گفتگو کر رہے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم 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 السلام السلام ورحمۃ وعلیکم ورحمۃ اللہ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. شروع کے 5 منٹ آپ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، جو مرضی علمی کریں غیر خیریت علمی سے کریں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے؟ جی اوکے، ایک دوسرے کو تعارف۔ شروع کے 5 منٹ آپ کے لیے، جب تک اسٹوڈنٹ نہیں آتے میں کلاس نہیں شروع کرتی سارے، ٹھیک ہے؟ ابھی شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 8، کیونکہ اس کے بعد یہ بک نہیں پڑھائی جائے گی، بار بار تو شروع نہیں کر سکتی نا میں، تو ہوں میں تو نہیں پڑھاؤں گی، میرے اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے پڑھائے، تو میں تو ابھی میرا یہ آپ لوگوں کی ریکویسٹ پہ، انڈیا کی بہنوں کی ریکویسٹ پہ میں نے یہ کلاس دوبارہ شروع کی ہے شروع سے، ورنہ میں کتنی بار یہ پڑھا چکی ہوں، میرا چینل بھرا پڑا ہے ریکارڈنگ سے، کتنے گروپس نے پڑھا اور چلے گئے، اور آگے بک 8 7 5 ایسے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بھی شروع کرتے ہیں ہم۔ اور آج ہمارا لیسن کیا ہے؟ الدرس الثامن، ثامن، سامنو، 8واں سبق، ٹھیک ہے؟ اب سامنو جو ہے نا، یہ صفت کا صیغہ ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے اور یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ اسم جو ہوتا ہے، جو ناؤن ہوتا ہے، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے فعل کی ہوتی ہے نا 3، اسی طرح اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسم ذات، پرسنل جو ناؤن ہوتا ہے، اسم ذات کسی بھی چیز کا ایک ناؤن ہوتا ہے، پرسنل نیم ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اسم صفت، ایڈجیکٹو ہوتا ہے اس کا آگے، صفاتی نام ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک نام، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک ذاتی نام ہے محمد، ٹھیک ہے؟ پھر احمد اور باقی جتنے نام ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام ہے، تو ذاتی نام کیا ہے؟ وہ اللہ ہے، اور باقی 99 نیمز کیا ہیں؟ وہ صفاتی نیم ہے۔ اسی طرح محمد ذاتی نیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور باقی احمد اور جتنے بھی ان کے یاسین اور پتہ نہیں کیا کیا کوئی 99 نیمز وہ بھی ہیں، تو وہ سارے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہد طاہر. اچھا، اسی طرح آپ کا بھی ایک ذاتی نام ہوتا ہے جو کہ پاسپورٹ میں لکھا ہوتا ہے، اور ایک صفاتی نام ہوتا ہے جو آپ کا نک نیم ہوتا ہے نا؟ وہ کوئی نہ کوئی ہم، آپ کا گھر میں ہوتا ہے، چھٹکی ہے نا، ایسے کچھ رکھا ہی ہوتا ہے نا، ببلی، بچوں کے نام ہوتے ہیں، لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے، وہ آپ بچوں کو پیار سے بلاتے ہیں، ان کے نک نیمز ہوتے ہیں، وہ صفاتی نیم ہوتے ہیں، اور ذاتی نیم کیا ہوتے ہیں؟ جو پاسپورٹ میں لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں، اسی طرح ہر چیز کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، مثلا مرد ہے نا، عورت، لڑکا، کیا یہ ذاتی نام ہے کہ صفاتی ہیں؟ نہیں، یہ تو صرف بیان ہو رہی ہے، مرد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی کوئی ہو. نہیں، مرد کیسے صفت ہو گئی بھائی؟ مرد کسی کا نہیں نہیں، نام ہے، مرد تو یہ نام اچھا. جو ہے نا، ایک تو نام ہوتا ہے نا، یہ والا نام ہوتا ہے نا جو آپ کا پاسپورٹ میں لکھا مادہ. جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہر چیز کا ایک ذاتی نام ہوتا ہے، کالی مرچ، لونگ، یہ کیا ہے؟ یہ یعنی کہ ذاتی یہ نام، یہ کپڑا بھی اسم مقدس میں آئیں گے. یہ صفت میں نہیں آئیں گے، ہری ٹھیک ہے. مرچ، کالی مرچ، لونگ، یہ سب ذاتی نام ہے، چاند، سورج، زمین، یہ ذاتی نام ہے، دنیا ذاتی نام ہے، دنیا صفت نہیں ہے، دنیا اور آخرت ذاتی نام ہے، عذاب کیا ہے؟ صفت ہے یا عذاب ذاتی نام ہے؟ نہیں، عذاب دیا جائے گا، نام ہے، ذاتی نام ذاتی نام ہے، اس کے آگے صفت آئے گی نا، عظیم۔ ہے. اچھا، ٹھیک ٹھیک یہ ٹھیک، اب میرے سمجھ. کہنے کا مطلب ہے کہ ہر چیز کا ایک جہنم، ہوں. جہنم کیا ہے؟ ذاتی نام ہے نا جہنم کا، ذاتی نام جی. تو یہ اس میں ذات میں آئے گا، جہنم کا پھر آگے صفت آئے گی، ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک تو یہ ٹھیک. ہر چیز کا ایک تو وہ نام ہے جو اس کا ہوتا ہے، یعنی اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ کامن ناؤن ہو گئے، مرد، عورت، یہ کامن ناؤن ہو گئے، اور یہ آپ کے کیا ہو گئے؟ یہ پراپر ناؤن پراپر. ہو گئے، پراپر ناؤن ہو گئے، تو دیکھیں نا، اب یہاں پہ یہ صفاتی نام آئیں گے سارے، عظیم، کریم، اللہ کے لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لے لیں،
مرچ کے لے لیں، ہری مرچ ہے تو ہری کیا ہے، وہ اس کی صفت ہے نا. جی اگر مرچ لیتے ہیں تو ہری کیا ہے، اس کی صفت ہے. صفت ہے جی. اگر مرچ لیتے ہیں اور کالی کیا ہے، اس کی صفت ہے. کڑوی صفت کیا ہے، اس کی صفت ہے. میٹھا ہونا کیا ہے، وہ صفت ہے. حلوہ کیا ہے، حلوہ ذاتی نام ہے یا صفاتی نام ہے؟ یہ ذاتی یہ ہوگا نا. ذاتی حلوہ ہے. ہاں، تو میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، وہ اس کی صفت وہ ہوگی. صفت ہوگی جی. ٹھیک ہے نا. تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. تو یہاں پر درس کیا ہوا پھر، ذاتی ہو یا دس، صفاتی ہوا؟ دس یہ تو ذاتی ہوا پھر. سبق ہے نا، سبق کسی چیز کا نام ہے نا، سبق. جی. جی یہ ذاتی ہے. دیکھنے میں دونوں اس میں، یہ بھی اس میں اور یہ بھی اس میں، لیکن یہ صفاتی اس میں، یہ صفت ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے. اور یہ کیا ہے، یہ اس کا نام ہے. یعنی سبق کسی چیز کا نام ہے تو اس کی صفت. 8واں سبق، 7واں سبق، 5واں سبق، پہلا سبق، دوسرا سبق. تو یہ دوسرا، پہلا، 7واں، 8واں جو لگاتے ہیں یہ صفت ہے. اور یہ جو سبق ساتھ آ رہا ہے نا، ایک ہی آ رہا ہے، اس کی صفت بدلتی جا رہی ہے. وہ ذات. تو وہ آپ کا ذاتی نام ہے سبق کا. وہ نہیں چینج ہو رہا ہے شروع سے. درس الاول، درس الثانی، درس الثالث، صرف چینج ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ درس جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو صفات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ایک چیز کی. اب جی. مرچ لے لیں، مرچ کالی بھی ہو سکتی ہے، ہری بھی ہو سکتی ہے، سفید بھی ہوتی ہے نا. سفید مرچ بھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھی ہے، لال مرچ بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری اس کے آگے صفات ہیں. مرچ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. تو مرچ کس میں آئے گا، اس میں ذات میں آگے اس کی صفات لگتی جائیں گی. اسی طرح جی. اللہ کا ذاتی نام ایک ہے، اس کے صفاتی نام تو 99 تو کیا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ایک ہی ہے. اب محمد کو مرد بھی کہہ سکتے ہیں نا، تو مرد بھی کیا ہے، مرد بھی محمد کے لیے یوز ہو رہا ہے نا، کہ نہیں جی. ہو رہا ہے نا. تو یہ جی. مرد بھی کیا ہے، یہ بھی کسی چیز کا نام ہے. عورت، لڑکی، لڑکا. اور بتائیں اس میں ذاتی نام میں اور کیا کیا ہو سکتا ہے. یہاں پر کاپی، کتاب، جتنے بھی قلم. آپ، ہاں بالکل، قلم، کاپی. اب کاپی کی صفت ہو سکتی ہے لائنوں والی، بغیر لائنوں والی، سادی، ہے نا. کتاب پرانی ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، لیکن کتاب ذاتی نام ہے، اس میں ذات ہے. تو جو بھی دنیا میں آدم علیہ السلام کو یہی تو سکھائے گئے تھے. ہر چیز جو دنیا میں ایجاد ہونے والی ہے اس کے نام. ٹھیک ہے. یا اور پلس جو ہے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کے نام سب سکھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. انہی چیزوں کا تو علم دیا تھا، اس میں ذات. ٹھیک ہے. تو وہ ویسے ویسے چیزیں ایجاد ہوتی جاتی ہیں، ان کے نام ان کے ساتھ جوڑتے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو جہاں پر آپ پڑھتے ہیں نا، تو اسم تو دونوں ہی اسم ہے. یہ بھی اسم ہے، اس پہ بھی الف لام آ رہا ہے، اس پہ بھی آ رہا ہے، لیکن یہ اس میں ذات ہے. اب آپ نے پہچاننا ہے. جیسے رجل کیا ہے، یہ اس میں ذات ہے ذات. نا. ٹھیک ہے. اس جی. کا تاجر ہونا اس کی صفت ہے، اس کا طبیب ہونا اس کی صفت ہے جی. صفت ہے. صفت ہمیشہ بعد میں آتی ہے. اور یہاں پہ تو خیر خبر بن کے آ رہا ہے. اگر صفت بنے گا تو وہ بالکل اسی کے ایکول طبیبو بنے گا. ٹھیک ہے. وہ بیلنسڈ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ خبر بن کے آ رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ رجل کیا ہے، یہ صرف اس میں ذات میں آئے گا. صفت ہے. وہ ہاں، اس کی تاجر ہونا اس کی صفت ہے، یا طبیب ہونا اس کی صفت ہے، تو وہ ذاتی نام میں آئے گا. جی. ہاں. اچھا. اب رجل ہے اور وہ طویل ہے، تو پھر کیا کریں گے. یہ کام رجل تو ہو گیا آپ کا ذاتی نام. طویل کیا ہو گیا، اس کا ایڈجیکٹو ہو گیا نا. اس کی صفت ہو گئی. کثیر ہے یا طویل ہے. تو اسم کو آپ نے اس طرح بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. کہ اسم جو جی. ہوتا ہے، سب سے پہلے اسم کی جو ڈویژن ہوتی ہے نا، وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک اس کا پرسنل نام، پرسنل پروناؤن ہوتا ہے، اور ایک اس کا ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے آگے اس کے جو لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. صفاتی نام. یہ دو طرح سے ہوتا السلام علیکم میم. ہے. وعلیکم السلام. بولے. میم یہ بک 5 ہے. ہاں جی، بک 5 ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور اس کا لیسن نمبر 8 پڑھ رہے ہیں، اور آپ غائب ہو جاتی ہے نا بیچ میں سے. نہیں میں میڈم ڈھونڈ رہی تھی یہ لیسن، اس لیے. تو لیسن نمبر 8 ہے نا، بک 5 میں، 4 میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. اچھا. سوری آپ لوگ، میں تھوڑا سا وہ ہو گیا مجھے آپ کی آواز سے. یہ بک 1 کا لیسن نمبر 8 ہے. بک 1 لیسن نمبر 8. اچھا بک 1. آپ صحیح ڈھونڈ رہی تھی، آپ کو نہیں ملا نا. تو یہ بک نہیں. 1 ہے، یہ سنڈے کو جب پڑھائی جاتی ہے. بک 1 لیسن 8 ہے. جی میم. تو آپ کو یہ سمجھ آیا جتنا میں نے بتایا ہے؟
नहीं मैम, मेरा ये जो है व्हाट्सएप ये देर से खुलता है, पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसलिए मैं कल भी ज्वाइन नहीं कर सकी। अच्छा, इसमें जात और इसमें सिफ्त में क्या फर्क है, आप बताएं। जी, इसमें इस, जात किसी भी नाउन का नाम होता है, किस नाउन का नाम नहीं होता, किसी भी चीज का नाम होता है। किसी भी चीज का, कलम, किताब, अल्लाह। शहर का भी नाम हो सकता है, यानी जी किसी जी स्ट्रीट का भी नाम हो सकता है। जी मैम। किसी भी चीज का जो भी नाम है, दुनिया में जो भी चीज हमने इजाद की है या जिसका कोई नाम रखा है, वो जाती नाम होता है। फिर जी उसकी सिफात होती है ना, छोटी जी छोटी सड़क तो बड़ी सड़क तो मोहल्ला, जी। मोहल्ला क्या है, इसमें जात है, उसकी सिफ्त होगी छोटा या बड़ा, बड़ा। वो उसकी जी सिफ्त होगी। तो मैम, हर समझ चीज आया। का एक नाम है, वो इस जैसे कार है, अच्छा। तो कार अब काली भी हो सकती है, नई भी हो सकती है, पुरानी भी। तो जो कार है, इसका जी नाम है ना, पर्सनल जी ना, जी। इसका नाम है, तो उसके आगे सिफ्त आई। छोटी या बड़ी। हाँ, तो हमेशा क्या होता है, सिर्फ नाउन पहले आता है इसमें जात, और बाद में एडजेक्टिव आता है। जी जी उर्दू में इसके उलट होता है। उर्दू में हम कार पहले नहीं लगाएंगे, अरबी में कार पहले लगाएंगे, फिर सिफ्त लगाएंगे उसकी, सफेद या काली, है ना, वो जो बाद जी में जी। लगाएंगे सिफत। ये उसका नाम है किसी चीज का, और ये उसकी सिफ्त है। लेकिन अरबी में ये इधर आ जाती है, उर्दू में, सॉरी, उर्दू में ये इधर आ जाएगी, काली गाड़ी, काली कार, वो इधर आ जाएगी। उर्दू में उल्टा हो जाता है। अरबी में क्या है, पहले मौसूफ आता है जिसकी सिर्फ बयान करते हैं, इसमें जात आता है, फिर सिर्फ। जैसे यहाँ पे पहले दरस आया ना, अब यहाँ पे देखें उल्टा तर्जुमा हो गया इंग्लिश में भी, ये इधर आ गया पहले और ये इधर चला गया। ठीक है, जी। उर्दू में भी ऐसे ही होगा, आठवां सबक, तो आठवां यहाँ आ जाएगा और ये हो हम्म। जाए। सही है, तो इस जी तरीके से है। तो बहरहाल ये दो चीजें होती हैं, अब आपने पहचानना है। तो ये इसमें इशारा है, हर एक चीज को पहचानना है। ये आपका इसमें जात है, इसको भी, ताजिर को भी इसमें जात ही कर ले, ये सिफत नहीं होगा, ठीक है। तबीब भी इसमें जात, डॉक्टर जो है ना, हम्म। डॉक्टर जो है उसमें जात है। फिर मशहूर डॉक्टर होगा ना, मशहूर लगाएंगे ना, तबीबुन मशहूरुन, मशहूर डॉक्टर होगा तो वो मशहूर उसकी सिफत होगा। तो डॉक्टर भी आदमी की तरह, इसमें जात, ये सिफत नहीं है, ठीक है। अच्छा, जी जी। उसके बाद वाह हर्फ है, जालिका क्या है, इसमें इशारा है। और रजुल क्या है, ये इसमें जात है। तबीबुन क्या है, ये भी इसमें जात है। तो यहाँ पर जी कितने सारे इसमें जात आ गए, ताजिर भी, रजुल भी। दो इसमें इशारा है, हाजा और जालिका। हाजा करीब का है और जालिका दूर का है। आप मुझे जी। ये बताएं कि ये क्या बनेगा, हाजा रजुलू, क्या इसको मुब्तदा। तोड़ सकते हैं? नहीं नहीं। हाँ, इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ये पूरा एक मुरक्कब है, जी दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, हाजर रजुलू। तो इनको जी मिला के पढ़ रहे हैं, तो इनको हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इनको मिला के ही कुछ बनाएंगे जुमले में। और ताजिर उन अकेला है, यहाँ पर एक जुमला खत्म हो गया और उसके बाद वो दूसरा। आ गया, वो के बाद दूसरा जुमला है। अब जी। जालिकर रजुलू को फिर हम एक साथ जो है ना मिला के जोड़ेंगे। पढ़ेंगे, और ये इसको अलग रखेंगे। तो जी। मुरक्कब को तोड़ नहीं सकते। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरकब इशारी। मुरक्कब इशारी है। ऊपर हमने पढ़ा था लेसन 1 में, हाजा किताबुन, जी हाजा किताबुन भी मुरक्कब इशारी है, राइट। शारी का जी। जी। शाबाश। इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है ना, हम्म, कोई जी फर्क है। है? नहीं, फर्क है। ये जुमला है ये, हम्म, इशारा नहीं है। इसमें अलिफ हाजा लाम नहीं किताब है। ये मुब्तदा खबर है। हम्म दोनों में फर्क अच्छी तरह देख लें। ये हम्म जी फ्रेज मैम। है, हाँ। ये फ्रेज है, और ये क्या है, जुमला है, सेंटेंस है। पिछली क्लास में मैंने अच्छी तरह क्लियर किया था ये, कि बीच में अलिफ लाम आएगा तो फ्रेज बन जाएगा, और अलिफ लाम नहीं आएगा तो फिर बीच में लाइन लगा सकते हैं, दोनों को जुदा कर सकते हैं। इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, इसको प्रेडिकेट बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों को मिला के हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको जुदा नहीं कर सकते, बीच में लाइन नहीं लगा सकते। इसमें लाइन लगा के इसको आप सब्जेक्ट बना लें और इसको प्रेडिकेट बना लें। जी। कहाँ है वो न्यू स्टूडेंट जो है, आयशा? हाय जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको समझ आ रही मैं क्या कह रही हूँ? आपने कब जी ज्वाइन मैम, किया? समझ आ रही है। अच्छा, क्या समझ आई है मुझे बताएं।
एक होता है फ्रेज और एक होता है जुमला, है ना? अ, ठीक है, तो अब जी आज जी हम पढ़ रहे जी हैं फ्रेज डिमोस्ट्रेटिव फ्रेज पढ़ रहे हैं आज हम। जी। मुरक्कब इशारी पढ़ रहे हैं। उसमें एक इशारा होगा और आगे अलिफ लाम वाला इसम होगा। ठीक है, बुक का पहला जी। जुमला हमने पढ़ा था हाजा किताबुन, वो मुरक्कब इशारी नहीं था, वो जुमला था, दिस इज आ जी। बुक, है ना? और यहाँ पर हाजर रजुल का क्या मीनिंग करेंगे? जी। फ्रेज का क्या मीनिंग करेंगे? हाजर रजुल, दिस इज मैन दिस मैन, दिस मैन, और दिस मैन। जी। दिस मैन, ओनली दिस मैन। और इसका क्या मानी करेंगे? हाजा रजुल का, इसका क्या मीनिंग करेंगे? दिस इज अ मैन। दिस इज अ मैन, क्योंकि इसको हम सेपरेट कर दिस इज अ सकते हैं, मैन। ठीक है? जी। दिस इज अ मैन, बट हाजर जी। रजुल क्या है? दिस मैन। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? जी। क्योंकि हाजिर हाजा रजुलुन ये सेंटेंस है, और हम्म, जो दूसरे वाला है हाजिर रजुलु, ये फ्रेज है क्या बिकॉज ऑफ अलिफ लाम। क्या चीज उसको फ्रेज बना रही है? क्योंकि इसमें अलिफ लाम ऐड हुआ है, और जो दूसरा इसमें है नहीं है। उसमें ऐसा नहीं है। तो ये जी। हमेशा याद रखना है आप लोगों को, जिसमें अलिफ लाम ऐड नहीं होगा वो सेंटेंस होगा, जुमला होगा। जी। वो उसमें है का मीनिंग आएगा, इज का मीनिंग आएगा, दिस इज आ मैन। ठीक जी। है, ये सब्जेक्ट बनाएंगे, ये प्रेडिकेट बनाएंगे, ये मुब्तदा है, ये खबर है, बीच में जी। लाइन आ सकती है, बट ये फ्रेज है, इसमें लाइन नहीं डाल सकते, दोनों को मिला के पढ़ना है, दोनों को मिला के सब्जेक्ट जी। बनाएंगे। और ये फ्रेज है। फ्रेज जो होती है वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होती जी। है, उसके आगे खबर लानी पड़ती है, उसका प्रेडिकेट लाते हैं तो वो जी। जुमला बनता है। ठीक है, तो ये उसका प्रेडिकेट लाए, ये इसको सब्जेक्ट बनाया, इसको हमने प्रेडिकेट बना दिया, तो ये हमारा क्या बन गया? पूरा जुमला बन गया। अब इसमें आप इसका इजाफा कर जी। सकती हैं, दिस मैन इज अ, ताजिर क्या होता है? मर्चेंट। मर्चेंट कहें, बिजनेसमैन कहें, कुछ भी कहें, मर्चेंट ट्रेडर कहें, जो या भी कहें, ताजिर कहें, ताजिर भी उर्दू में ताजिर भी कह सकती हैं। ये आदमी जी। ताजिर है, ताजिर है। जी। उर्दू में जो है ना ज्यादा वो है, क्योंकि सारी चीजें हमारी उर्दू में भी वही होती हैं ज्यादातर। और जी। ये ना समझे कि ये हमारा उर्दू का लफ्ज है, ये उर्दू का जी, लफ्ज अरबी का नहीं भी है, है ना। ये बेसिकली पीछे से ही आ रहे हैं, अरबी से ही आ रहे हैं। हमारी उर्दू में जी। जब यहाँ पे मुसलमान आए ना, तो अरबी को यहाँ ले आए, और अरबी के लफ्ज हमारी उर्दू में जो उर्दू है, अब तो उसमें इंग्लिश भी कितनी ज्यादा शामिल हो गई है ना। जी। आप देखती हैं ना टीवी वगैरह, आपको पता है कितनी इंग्लिश बोलते हैं उर्दू के अंदर मिक्स करके, बल्कि उर्दू के तो चंद अल्फाज रह गए, जी। मजबूरी में बिल्कुल बोलने ऐसा ही पड़ते हैं कि उनके सामेईन जो होते हैं वो भी उर्दू बोलने वाले होते हैं ना। है। जी। तो फिर व्यूअरशिप नहीं मिलती, इसलिए उर्दू थोड़ी सी बोल देते हैं बीच में। समझ जी। आई है मेरी बात? वरना जी। पूरी इंग्लिश बोल दें। तो आजकल के यंग जो हैं वो इसी तरह हैं। तो बहरहाल हमारी अपनी जुबान उर्दू जो है ना, उसके अंदर उसको लश्करी जबान कहते हैं। लश्कर जी। यानी फौज के जैसा लश्कर होता है ना, तो उसमें हर एरिया के लोग शामिल होते हैं आर्मी में। कोई पंजाबी होता है, कोई सराइकी होता है, कोई किस तरह के लोग होते हैं, तो वो अपनी अपनी जबानें बीच में डाल देते हैं। इसी तरह जी। उर्दू में अरबी भी, अरब आए तो अरबों ने अपनी जबान डाल दी, ईरान वाले आए तो ईरान वालों ने अपनी जबान डाल दी, इंडिया वालों ने अपनी घुसेड़ दी। जो उनकी हिंदी जबान है वो उसके लफ्ज भी बोले जाते हैं हमारे। जी। इसी तरह इंग्लिश वाले आए तो उन्होंने अपनी डाल दी। हम्म, तो वो एक लश्करी जबान बन गई उर्दू। ठीक है, तो अब जी। ताजिर को, आप ताजिर जो है ये मर्चेंट और उसको ट्रेडर भी कह सकते हैं, जो मर्जी है कहें। तो हाजिर जी। रजुल्लु मुब्तदा बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट बन जाएगा, यानी खबर बन जी, जाएगा। खबर बन जाएगा। अब इस जुमले में लाइन कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी, दिस मैन। ये नहीं कहेंगे दिस इज अ मैन। अगर दिस इज अ दिस मैन मैन। कहेंगे तो यहीं पे आपका वो पूरा हो जाएगा सेंटेंस। तो इसको क्या बनाएंगे फिर?
अगर आप इसको बनाएंगे इसको जी इस तरह से। इसको दिस मैन बनाएंगे, इसको फ्रेज हम्म बनाएंगे, अब इसको आगे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे फ्रेज बना के, और ये खबर हम्म बनाएंगे। ठीक है। जी वज़ालिका रजुलु तबीबुन, इसको भी इसी तरह करेंगे। जब अलिफ लाम आ जाता है तो फिर इनको जुदा नहीं कर सकते, इनको फिर मिला के ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यही आज के लेसन में हम पढ़े। ठीक है। तो ये भी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब ये मुब्तदा है और ये खबर है। ये जी सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, खबर है। क्योंकि अधूरा है ना ये, दिस मैन दिस मैन दिस मैन 100 बार भी कहोगी ना तो कोई मतलब समझ नहीं आना किसी को। लोग बोलेंगे आगे भी तो बोलो, कोई न्यूज भी तो दो, कोई न्यूज भी तो दो इसके बारे में, आदमी के बारे में। तो फिर आपने न्यूज क्या लगाई कि वो डॉक्टर है, तो इसको खबर इसलिए कहते हैं कि ये न्यूज है इसके बारे में। दैट मैन के बारे में न्यूज क्या है, वो है आपकी तबीबुन, इसको खबर कहते हैं। तो मुब्तदा वो होता है जिससे जुमले की इब्तदा होती है, जुमला शुरू हो रहा है। वो वन वर्ड भी हो सकता है, वो कोई फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है। तो वन वर्ड में अगर वन वर्ड हो तो ये हाजा वन वर्ड है ना, तो ये सब्जेक्ट बन रहा है। तो मुब्तदा जो है वो वन वर्ड भी हो सकता है और खबर भी वन वर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, इस ये पूरा कंप्लीट जुमला है, दिस इज अ बुक। ठीक है। और हाजा रजुलुन भी कंप्लीट जुमला है, लेकिन हाजर रजुलु ये फ्रेज है जब बीच में अलिफ लाम आ गया। अब ये अकेला कोई मानी नहीं देगा, इसके साथ प्रेडिकेट हमें लाना पड़ेगा, खबर उसकी लानी पड़ेगी। वरना 100 बार भी हाजर रजुलु जालिका रजुलु कहेंगी, कुछ फर्क नहीं पड़ना। सही है, समझ आ गई बात। अब आप आगे जी पढ़े, यहां से कौन पढ़ेगा आगे? सब लोग बात, हाँ पढ़े। आ जाए जिनके हैंड रेज है, फिजा आ जाए। जी इस्मु ताजिरी हम्म, व मुहम्मदुन। कहाँ से पढ़ी है? यहाँ से पढ़े ना? सेकंड लाइन से पढ़े ना। हाँ, सेकंड लाइन से पढ़े। व मुहम्मदुन वस्मु तबी तबी बी हा हम्म, साइदुन। इस ताजरी व मोहम्मद कहाँ है, मुझे बताएं। ताजिर इस ताजिर का नाम मोहम्मद है। मोहम्मद तो है ही नहीं यहाँ पे। मोहम्मद का नाम अपनी कभी लिखा हुआ देखा नहीं। महमूद 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 नहीं होता, महमूद होता है। मफऊल के वजन पे महमूद। ठीक है। इस जी मुत्ताजिरी महमूदुन, वाव है ही नहीं बीच में, आपने 2-3 बार वाव पढ़ा। जी तो ताजिर का, इस मुत्ताजिरी का क्या मतलब है? ताजिर का नाम। अब का की आ गया तो कौन सा फ्रेज बनेगा ये? इसमें इशारा ये वाला तो नहीं बन रहा, डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज तो नहीं बन रहा। ये कौन सा फ्रेज बन रहा है? इस्मुत ताजिरी, में का की का तर्जुमा आ रहा है ना, जी पोजेसिव, बाजी पोजेशन की बात, मुदाफ पोजेशन की बात हो रही है, पोजेशन की। ठीक है। मुरक्कब इजाफी। हाँ, तो मुरक्कब इजाफी इजाफी बन बने। के आप, मुरक्कब इजाफी बन के ताजिर्स नेम, है ना, पोजेशन की बात हो रही है। ताजिर का नाम क्या है? महबूद है। तो ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, बीच में लाइन आएगी और ये क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट या खबर बन जाएगा। ठीक है। तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट। दोनों जबानों में सीख लें। अच्छा है, किसी बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा तो अच्छी बात है। तो इसको हम जुदा जुदा नहीं कर सकते क्योंकि बीच में अलिफ लाम आ गया है। अगर ये अलग अलग होता तो फिर हम इसको, यानी अलिफ लाम ना होता, फ्रेज ना होता, तो फिर एक को हम मुब्तदा बना लेते, एक को खबर बना लेते। ठीक है। महमूदुन, अब यहाँ पे एक जुमला कंप्लीट हुआ है आपका, ये पूरा एक जुमला बना है। वस्मु, पढ़े वस्मु, वस्मु इसको मिलाएं आगे, तबीबी वस्मु तबीबी। वस्मु तबीबी साइदुन। हम्म, और हाँ, वो तो आदमी डॉक्टर है। इस्म तबीबी का क्या मतलब होगा? डॉक्टर का नाम। और डॉक्टर का नाम
यहाँ पे ताजर डॉक्टर का का नाम नाम और यहाँ डॉक्टर का नाम। इसम जी का मतलब नाम डॉक्टर होता है का ना। नाम डॉक्टर का नाम क्या है? जी सईद है। सईद है। तो ये आपका मुब्तदा हो गया और ये खबर होगी। ठीक है, इसके बाद जी तबीब के बारे में खबर दी जा रही है कि उसका नाम क्या है, वो सईद है। तो जी इस्मुत तबीबी और इस्मुत ताजरी दोनों पोजेसिव केस बने हैं और ये वाला डिमॉन्स्ट्रेटिव फ्रेज बने। ठीक है, केस भी कह सकते हैं, फ्रेज भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इसको पढ़े, हाजल आगे पढ़े, एक जुमला और पढ़ ले। हाजल हाजल बैतु हम्म लित्ताजिरी। हम्म, वो हाजल घर बैतु लित्ताजिरी। ठीक है ताजर वो घर ताजिर वो घर ताजिर के लिए है। हाँ ठीक है ना, ली का मतलब लिए है ना, फॉर, ताजिर वो घर के लिए। ताजिर के लिए है। ये ये घर जाली का होता है वो। जी ठीक ये है ना। घर हम्म, किसके लिए? ताजिर के लिए है। ताजिर के ताजिर लिए के है, लिए। ट्रेडर मर्चेंट के लिए है। वह जालिकत तबी जालिकल बैतू, और और वो घर वो घर लित्तबी तबीबुन लित्तबीबी। लित्तबीबी हम्म, वो घर डॉक्टर के लिए है। डॉक्टर के लिए। ठीक है ना। जी चलिए एक लाइन और पढ़ ले, टाइम देती हूँ आपको। बैतु ताजिरी अमामल मस्जिदी। हम्म, ताजिर बैत, ताजिर का, ताजिर का घर मस्जिद के अमामा। सामने। इमाम नहीं है, इमाम ये अमामा है। ठीक है, इमाम मामा तो है। लीडर होता है ना, लीड जी करने वाला, प्रेयर को लीड करने वाला इमाम होता है। अमाम क्या होता है? ये भी प्रपोजिशन ही होता है, अमामा। ठीक है ना, अमामा का मतलब है सामने इन फ्रंट, इन फ्रंट सामने ऑफ, सामने। ठीक सामने है, इन फ्रंट ऑफ मस्जिद। ठीक है, तो बैतु जी ताजरी, ताजर का घर, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है। अभी रात को 9 बजे वो प्रैक्टिस करवाएंगी, आपने आके पढ़ना है उधर, सबसे पहले आपने आना है। जी रात को आप लोग इंशाल्लाह 11-11 बजे सोते हो, फोन पे होते हो, सोते नहीं हो, तो 9 बजे आके पढ़ नहीं सकते। सैटरडे भी पढ़े और संडे भी पढ़े, दोनों दिन पढ़े। मैं सुन रही थी, आप बता रहे थे हम सैटरडे भी फ्री हैं, संडे भी। जो जिससे सैटरडे मिस हो जाता है वो संडे को आके पढ़ ले, जिससे संडे को मिस होता है, कहीं गया हुआ है, वो सैटरडे को पढ़ ले। ठीक है ना, वो देखें अपना टाइम आपको दे रही है। सबसे जो महंगी तरीन चीज है दुनिया में, एक्सपेंसिव, वो इंसान का टाइम होता है। और जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो अपना टाइम दूसरे को दे रहे होते हैं, तो इसलिए उनका इतना बड़ा उस्ताद का दर्जा होता है। समझ आई है? तो वो अपना टाइम आपको दे रही है, मैं आपको अपना टाइम दे रही हूँ आके। आपके लिए हम आपकी खैर ख्वाह हैं, आपके वेल विशर हैं, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। वरना हर कोई नहीं आगे करता कि सुबह सुबह 4 बजे जागे और आपको पढ़ाए। सही है। तो आप इसको जी गनीमत समझें, इसको आप, कोई नहीं इस तरह से पढ़ाएगा आपको, कोई भी नहीं पढ़ाएगा। 2 लफ्ज बताते हैं, उसके बाद कहते हैं बस इसी को याद करो बैठ के। पूरा लेसन हम करके जाते हैं, तो फायदा उठाना, रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब पे, दोबारा सुन ले और पढ़ने वाले बने। अल्लाह ताला पूछेंगे क्यों नहीं किया था। मेरी तो एक ही किताब थी ना, दुनिया की डिग्रियां ली थी, कितनी कितनी किताबें पढ़ी थी, चार्टिंग थी पूरी पूरी, मेडिकल मेडिसिन की किताबें और दूसरी और तीसरी। तो मेरी एक किताब नहीं पढ़ सकते थे, उसको नजरों से ही पढ़ लिया बस, नाजरा नाजरा नजरों से पढ़ लो बस, होंठ भी ना हिलें, उसको इतना ही करना है। दुनिया की कोई किताब मुझे बताएं समझे बगैर पढ़ी जा सकती है? पढ़ते हैं आप लोग, अखबार ऐसे ही पढ़ लेते हैं बगैर समझे हुए, कोई मैगजीन ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कोई नावल ऐसे ही पढ़ लेते हैं, समझते हैं ना उसको। तो किताब को क्यों ऐसे पढ़ लेते हैं, अल्लाह की किताब को? सोचने की बात है ना, तो उसके ऊपर भी थोड़ा टाइम लगाना है। तो ये अरबी आपको उसी तरफ लेके जा रही है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। बुक 1 का लेसन 8 आ गया है, तो इसको आप लोग पक्का करें। आपकी सिस्टर, मैंने बेहतरीन सिस्टर आपको दी है, डिवोटिव है वो। ठीक है,
تو میں تو اتنا نہیں پڑھا سکتی نا. اب آپ مجھے کہہ رہی انگلش بھی پڑھائے, میں بتائیں میں کہاں سے اتنی انرجی لوں, ابھی میری سرجری بھی ہونے والی ہے آنکھوں کی, تو وہ میں کیسے, آپ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پڑھا دیں, نہ پڑھائیں تو آپ ناراض ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ دوسرے کی مجبوری بھی تو سمجھے نا, آپ صحیح کر کے پڑھے, وہ میم آپ کو یعنی انگلش, وہ ہم آپ آپ کو کو ناراض بالکل نہیں ہوتے, ہم ویسے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی, ورنہ ناراضگی کا تو ہاں سوال ہی پیدا نہیں بالکل ہوتا. افسوس کرنا چاہیے, آپ کو اتنا ہونا چاہیے پیشنیٹ کہ آپ کو اب دکھ ہونا چاہیے بالکل. کہ ہمیں یہ چیز نہیں آتی, تبھی آپ جا کے کچھ کریں گے نا. ٹھیک ہے نا. یہ جو کرکٹر ہوتے ہیں اور یہ کھیلتے ہیں اور بڑے بڑے کھلاڑی بنتے ہیں ہر چیز میں, کوئی بیڈمنٹن کا ہے تو کوئی کسی کے اسکواش کا ہے, یہ آپ سب دیکھیں تو ان میں پیشن ہوتا ہے ان میں. میم اس میں یہ بھی کہ اسٹوڈنٹ جب تک خود سے ایفرٹ نہ کرے, ٹیچر لاکھ سر پھاڑ لے, وہ کچھ نہیں کر سکتی. جب تک اس کے اندر خود سے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کی نہ ہو, تب تک آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں پکا جب تک پکایا نہیں کھلاؤ. آپ کو بھوک نہیں لگی, جب تک آپ کو پیاس نہ لگی, ہم آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. ہم آپ کو کھانا کھلا سکتے ہیں, آپ کو بھوک نہیں ہے, آپ کہیں نہیں میں نے تو پیٹ بھرا, بھی آؤٹ ریسٹورینٹ میں بھر کے آئی ہوں پیٹ, تو گھر میں کوئی کھانا کھائیں گی, آپ کا فریج کھولنے کو بھی دل نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. فریج بھی آپ تبھی کھولتے ہیں جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے, پانی کی طرف بھی آپ تبھی دوڑتے ہیں جب پیاس لگی ہوتی ہے. تو علم کا بھی یہی ہے نا, علم کی بھی پیاس ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے. تو اس پیاس کو اپنے اندر لائیں, تڑپ لائیں, اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جن کے پاس یہ چیز ہوتی ہے, تڑپ بھی ہوتی ہے, بھوک بھی ہوتی ہے, پیاس بھی ہوتی ہے. اچھا. پھر اللہ تعالیٰ ٹیچر بھی دے دیتے ہیں اور سب کچھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. شاہدہ, آپ آ جائیں پڑھیں یہاں سے اور غور سے سنیں ابھی, ٹھیک ہے. السلام. اور انشاءاللہ جب ٹائم آئے گا نا آپ کے لیے, تو انشاءاللہ ابھی اگر آپ اچھی طرح بہیو کریں تو یہی ٹیچر آپ کو انگلش بھی پڑھا سکتی ہیں, ڈونٹ وری. آخر میں آپ کو السلام 5-10 علیکم. منٹ انگلش بھی پڑھا سکتی ہیں. یہ یاد رکھیں, ہر کوئی ایسا نہیں کرے گا, اپنا ٹائم نہیں دے گا آپ کو, تو جو دے رہا ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. پڑھیے شاہدہ, پڑھیے جی. آپ. لمن هذه السيارة ولمن تلك. ہوں، یہ تو آپ نے پڑھا ہی نہیں نا, امام المسجدی ہو گیا تھا. بیت جی میں پڑھ التاجری لیتی امام المسجدی. ہوں. اب دیکھیں جو آپ کا بائی. سبجیکٹ ہے وہ بھی آپ کا فریز بن کے آ رہا ہے, جی. اور جو پریڈیکیٹ ہے وہ بھی فریز ہی بن کے آ رہا ہے نا. ادارہ. جی. جی. امام دونوں جو ہیں وہ مرکب اضافی پوزیسو کیس بن کے آ رہے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا. تو تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے, مسجد کے سامنے ہے. جی. وبیت وبیت الطبیبی. الطبیبی, وبیت الطبیبی خلف المدرستی. اور ڈاکٹر کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. مسجد کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ جی. کا خلف ال, یہ یہاں سے یہاں پہ آپ لائن لگائیں گے. جس دن آپ کو آ گیا نا جی. کہ لائن کہاں لگانی ہے, جی. کون سا میں نے سبجیکٹ بنانا ہے اور کون سا میں نے وہ بنانا ہے, تو جب بھی کوئی فریز آئے گا نا تو آپ اس کو توڑ نہیں سکتے, دونوں کو ملا کے بنانا ہے. تو یہاں جی. پر پہلے والے جملے میں کیا تھا, اس جملے میں یہاں لائن لگی تھی, یہ والا فریز تھا اور یہ مفرد ورڈ تھا. ٹھیک ہے, مفرد. جی. مفرد ورڈ تھا. اس میں بھی ایسے ہی تھا, یہاں پہ لائن لگی تھی اور یہاں یہ مفرد جو تھا یہ پریڈیکیٹ بنا تھا. یہاں سے آ کے آپ کا یہ والا بھی فریز ہے اور یہ بھی فریز ہے. اب یہ والا حاضل بیتو ڈیمونسٹریٹو فریز ہے, اور یہ والا کیا ہے, مرکب جاری ہے. تو جاری. یہ آپ کا کیا سبجیکٹ اور یہ پریڈیکیٹ ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, یہاں پہ آپ لائن لگائیں گے, اس کو سبجیکٹ بنائیں گے, اس کو, تو یہ بھی آپ کا فریز ہے اور یہ بھی فریز ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کی خبر آ سکتی ہے, مفرد بھی آ سکتی ہے اور فریز بن کے بھی آ سکتی ہے. اسی طرح مبتدا بھی آپ کا مفرد بھی آ سکتا ہے اور فریز بن کے بھی آ سکتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوا, یہاں پہ یہ دونوں جو ہے نا, یہاں بھی اور یہاں دونوں آ رہے ہیں. اب یہ والا پڑھے, اس میں کیا ہو رہا ہے. میم میرا ایک ولمن. کوشچن تھا. ہاں بولے. جو یہ خلفہ ہے اور امامہ ہے, یہ دونوں ایڈورب ہیں, تو اس لیے ہم اس کو مضاف الیہ میں کنسیڈر کریں گے, آئی مین لائک بالکل پوزیسو فریز میں. بالکل. اچھا, یہ بالکل یہ نون ہے. اس کو یہ ان کو کہتے ہیں ایڈوربس. ہاں, آپ نے ایڈورب جی کا لفظ ابھی, ایڈوربس. ہاں جی ایڈورب جی ہے. سر ایڈوربس. یہ ایڈورب ہے, یہ پریپوزیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, جی پریپوزیشن والا کام کرتے ہیں, اگلے والے اسم کو زیر دیتے ہیں, لیکن یہ جو ہے ایڈورب ہے. اور یہ دیکھیں دونوں اپوزٹ ہیں, امامہ اور جی خلفہ. خلفہ کا مطلب کیا ہے, بیہائنڈ. صحیح ہے, جی بیہائنڈ اور ان فرنٹ. بیہائنڈ. جی صحیح ہے نا.
تو یہ امام المسجدی بھی بالکل ایسا ہی فریز ہے جیسے کہ بیت التاجری ہے. یہاں پہ الف لام اور تنوین نہیں آ رہی, یہاں زیر آ رہی ہے. یہاں پہ الف لام اور نہیں آ رہا, تنوین زیر آ رہی. اچھا آگے جی پڑھیں اور جلدی, بولے. ایک ایک اور کوشچن تھا. جیسے آپ نے بتایا کہ بیت التاجری جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور ہوں، امام المسجدی, ہوں. سو یہ اس کا پریڈیکیٹ ہوگا. جس کا پریڈیکیٹ ہوگا, بالکل ہوگا. بیت التاجری کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا, جی تاجر کے گھر کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے نا, جیسے آپ ریڈیو پہ اس پہ نیوز سنتے ہیں, ٹی وی پہ. جی جی تو تاجر کا گھر, اب آپ اتنا ہی بول دیں گی تو یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہے, یہ فریز ہے. اب اس کے آگے آپ کو پریڈیکیٹ لگانا ہے کہ خبر دینی ہے اس کے بارے میں کہ امام المسجدی مسجد کے سامنے ہے. آپ بیچ جی میں آپ نے جہاں لائن لگائی ہے وہاں پر آپ از لکھ لیں, ہے نا, یا جی ہے لکھ لیں آخر میں. ہے. جب جی جملہ بن جاتا ہے تو از یا ہے کا ضرور. تو بیت التاجری از امام المسجدی, بیت جی التاجری از امام المسجدی. تاجر کا گھر مسجد کے سامنے ہے. اردو میں یہ جی ترجمہ ہوگا. یہ وہ بیت الطبیبی, مضاف یہاں پہ مضاف نہیں. بالکل میم یہ مضاف آ، مضاف الیہ بھی ہو گیا نا, یہ بائت مضاف تاجری از مضاف الیہ. بالکل مضاف مضافل ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضافل ہے, دونوں کو ملا کے آپ پوزیسو کیس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پوزیشن پوزیسو وہ کیا ہوتا ہے فریز کہہ سکتے ہیں, پوزیسو کیس کہہ سکتے ہیں, دونوں باتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی تو اس میں جو عموماً ہوتا ہے نا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ڈیفینیٹ ہوتا ہے اور جو خبر ہوتی ہے وہ انڈیفینیٹ ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی کیس ہوگا. ہاں, جب مرکب ہوتا ہے نا تو پھر نہیں دیکھا جاتا. اب اس میں اوکے. تھوڑی سی ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو پھر زیادہ ہو جائے گا. یہ آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے, یہ معرفہ ہے, یہ ڈیفینیٹ ہے. اب آپ کہیں گی اس کے اوپر تو بیتون ہے, نکرہ ہے, الف لام تو آ ہی نہیں رہا ہے نا. جی تو میں آپ کو اس میں ایک بات بتا دیتی ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی اور سب کو سمجھ آ جائے گی, بلکہ پہلے بھی آئی ہوئی ہے. کوئی ایکسپلین کرے گا یہ معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کوئی آ کے مضاف مجھے ہے. بتائے گا کہ یہ معرفہ کیوں ہے؟ میں مضاف معرفہ ہوتا ہے. مضاف جو ہے نا وہ ناؤن ہاں ہوتا ہے, مضاف مضاف معرفہ ناؤن. نہیں ہوتا, مضاف نکرہ ہوتا ہے. نکیرہ, سوری سوری, نکیرہ ہوتا ہے. نکرہ ہوتا ہے, معرفہ نہیں ہوتا. نکرہ ہوتا ہے. جی معرفہ تب ہوتا ہے جب یہ مضاف الیہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ معرفہ ہے نا تو یہ آٹومیٹک معرفہ ہو جائے گا. یہ پوائنٹ میں بتانا چاہتی. مضاف الی المعرفہ, آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی جی, اس میں علم کی یہ اقسام میں سے آتا ہے مضاف الی جی المعرفہ. مضاف ہاں, المعرفہ. اگر آپ کا مضاف الیہ معرفہ ہوگا تو یہ نکرہ بھی معرفہ ہو جائے گا, آٹومیٹک ہو جائے گا. اور اگر اس کو میں اوکے. کہوں بیتو امام من, ٹھیک ہے, تو کیا بیتو معرفہ ہو جائے گا اگر میں اس کو امام من کر دیتی ہوں یہاں پہ؟ نہیں. نہیں. امام کا گھر مرکب اضافی تو آ، بن رہا ہے, لیکن کیا یہ والا معرفہ ہو گیا؟ بیتو والا نہیں, دن کر لیں. ہو اب جائے گا یہ نا. امامن جو ہے, امامن تو نکرہ ہے نا, یعنی کہ مضاف الی نکرہ. جس کا سوال تھا وہ مجھے بتائیں, بیتو والا دن, وہ مجھے بتائیں کہ کیا آ، اب یہ معرفہ ہو جائے گا یہ والا؟ نہیں نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ کیونکہ یہ کیا ہے آپ کا, یہ نکرہ ہے, یہ نکرہ ہے. انڈیفینیٹ ہے نا. تو جی اس کو اگر میں بیت الامام منہ کر دوں, بیت الامامی کر دوں, الف لام لگا دوں, معرفہ بنا دوں, تو یہ جی بھی پھر معرفہ ہو جائے گا. پھر یہ معرفہ ہو اگر جائے اس کے گا. اوپر میں الف لام لگا دوں, اس کو معرفہ کر دوں, البلد دوں, تو یہ بیت بھی معرفہ ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے نا. اوکے. جی اچھا اب مجھے بتائیں بیت محمد دن, اب اس کے بارے آ، میں مجھے بتائیں, کوئی اور جی نہیں بولے گا؟ کیونکہ محمدین ایک نام ہے, اس علم تو یہ معرفہ ہے نا, معرفہ معرفہ ہی ہے نا. ہوتے ہیں نا. جی ہاں معرفہ بالکل ہوتے معرفہ ہیں ہے, تو تو یہ بھی پچھلا معرفہ بھی ہو گیا. معرفہ ہی ہوگا. تو اب جی آپ کو پتہ لگ گیا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے, تو یہ معرفہ ہے. جی معرفہ ہے یہ. ابھی میں اس کو ان شارٹ لے کے گزر رہی تھی, میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ابھی جب مرکب اضافی ہوتا ہے تو اس کو نہیں دیکھتے کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. میں ان شارٹ کر کے بتا رہی تھی آپ کو, تاکہ باقی لوگ بھی جو ہے نا ان کو بھی تھوڑا اتنا ہی میں رکھوں ابھی. لیکن ابھی میں نے یہ بتایا تو آپ کو سمجھ آ گئی نا. جی جی ہاں, بالکل. دیکھیں یہ معرفہ اس لیے کہ اس کے آگے والا معرفہ ہے, یہ جی معرفہ اس لیے کہ اس کے آگے والا معرفہ ہے. اگر یہ نکرہ ہوتا, مسجدن ہوتا, تو یہ بھی نکرہ ہوتا. تو اوکے. مضاف بیسیکلی تو وہ نکرہ ہوتا ہے, لیکن اگر اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے
तो वो भी मार्फा हो जाता है। और अगर ये नकरा हो तो वो नकरा ही रहता है। इसकी मिसाल एक लिख लेना, वो जो मैंने अभी बताई है, बैतुल वलदी और बैतु वालदे। वलदिन, जी। वलदिन, बैतुल वलदी और बैतु वलदिन। एक जगह पे बैतु मार्फा है और एक जगह पे नकरा है। सही है। जी। हम्म। चले, तो हो गया। बाकी जिनको जितनी समझ आ रही है वो उतना ही रखें, और ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनको अब आ गई है तो हो गया। तो ये मार्फा हो गया, और मार्फा होके ये मुब्तदा बन गया। जी। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पर भी ये आपका ये मार्फा है तो ये मार्फा होके मुब्तदा बन गया। मुस्तकबिल। जी। ठीक है। तो और जो मुजाफ जो सेकंड होता है, पार्ट है वो सर। मुजाफ का मार्फा होना जो होता है ना, डिपेंड करता है मुजाफ इलैह पे। हम्म। वह बेसिकली वो नकरा होता है, लेकिन अगर ये मार्फा हो तो वो भी। जैसे मैं कहती हूँ बेतु हूँ, अभी बेतु हूँ जो है उसका घर है ना। जी। अब मुझे जी। कौन बताएगा बेतु मार्फा? इसको भी मैं मुब्तदा बना सकती हूँ। बेतु हूँ करीबुन, उसका घर करीब है ना। उसका जी। घर, हिज हाउस इज नियर। तो फिर या दूर है, बाईदुन कर लेंगे। अब यहाँ पर बेतु मार्फा है या नकरा है? आ, बैतुहू यहाँ पे ये नकीरा है। नकरा नहीं है, क्योंकि हु जो है ना, प्रोनाउंस भी मार्फा होते हैं। जी जी, बिल्कुल। जैसे आपका ये वाला मार्फा है ना, इसी तरह प्रोनाउंस भी मार्फा होते हैं। बेतु हम, अब ये बेतु के बाद हम आ रहा है ना, प्रोनाउन आ रहा है ना, प्रोनाउंस भी मार्फा होते हैं। जैसे आपने कहा ना कि मोहम्मद मार्फा है, हालांकि उसमें तनवीन हम्म। लगी हुई थी, है ना। जी। तो आपने उसको हम्म। कहा ना कि ये अलम है। तो इसी तरह जी जमायर बिल्कुल। जो होते हैं वो भी मार्फा होते हैं। तो उससे पहले जो नाउन आएगा, मुजाफ आएगा, वो भी ये भी मुजाफ मुजाफ इलैह ही बन रहे हैं ना। जी। पोजेशन की जी। बात हो रही है कि नहीं हो रही? जी। देयर हो रही हाउस है क्योंकि हिज हो रही। हाउस है ना। तो ये भी आपका वो ये हो गया। तो अब आपका ये क्या है? ये मार्फा हो गया, क्योंकि ये वाला मार्फा है। यहाँ पे ये वाला मार्फा है तो ये भी मार्फा। बैतु हम बाईदुन, उनका घर दूर है। दूर है। ठीक है, तो ये पूरा मुब्तदा, इसको तोड़ नहीं सकते, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट बन जाए। ओके। सही है। हम्म। तो ये चीजें इस तरह समझनी है आपको। तो यहाँ पे आपका जवाब मिल गया आपको। ये क्वेश्चन आना ही बहुत बड़ी बात होती है, हर एक के दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता। ये क्वेश्चन आना आधा इल्म होता है कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब आप चीजों को समझ रहे हैं और समझना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इस वाले सवाल को देखिए शाहिदा। जी। लिमन हाजिहिस सय्यारतु व लिमन का। दिल का, ठीक है ना। अब लिमन क्या बनाएंगे हम? ये कौन सा मुरक्कब है? आ, जर मजरूर, मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी है और शुरू में आ रहा है। मुरक्कब जारी जिधर भी आएंगे ना, ये बात याद रखें, पिछले लेक्चर में मैंने बताई थी लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, दोबारा रिवाइज नहीं करते। मुरक्कब जारी जिधर भी होंगे ना, शुरू में आए बाद में आए, इन्होंने खबर ही बनना है, इन्होंने प्रेडिकेट ही बनना है। हम्म। अच्छा। ठीक है, तो ये खबर मुकद्दम बन जाएगा। मुकद्दम। जी। हम्म, और पहले आ गया ना तो मुकद्दम कह जी। देंगे। मुकद्दम। अपनी जी। जगह पे आएगा तो खबर कहेंगे, बाद में आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, यहाँ पे आया है, ये बाद में आया ना, खबर ही बनाया था हमने। जी। इसको हम खबर जी। मुकद्दम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अपनी जगह पे आ रहा है, बाद में आ रहा है। मुअख्खर आ रहा है। जी। जो उसकी जगह है वहीं पे आ रहा है, लेकिन अभी शुरू में आ गया तो खबर मुकद्दम। मुकद्दम क्या होता है? एडवांस्ड। पहले। अच्छा। हाँ, लिमन। तो अब ये जैसे आप एडवांस कुछ कर देना। अच्छा, लिमन, तो ये खबर मुकद्दम बन गया। हाजी हिस सयारा तू, दोनों को मिला के ही पढ़ेंगे, क्या बनेगा? जी। ये जुमला बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ये तो ये खबर है तो मुदाफ मुदाफ इलैह। ये इससे ये मुदाफ सब्जेक्ट बन मुदाफ जाएगा ना, ये मुब्तदा अच्छा। बन जाएगा ना। जी। ये हाँ, ये खबर बन गई थी, तो अब इस खबर की का मुब्तदा भी चाहिए ना। अगर इसको आपने प्रेडिकेट बनाया है तो इसका वो भी चाहिए जी। ना। जी। तो खबर ये में आपका हाजा। सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलके तो जुमला बन गया। अब इसका ट्रांसलेशन करें। लिमान का क्या मतलब होता है? किसके लिए? हम्म, के मन लिए। का मतलब तो ये। हु होता है, हु होता है अच्छा। ना।
ये लिमन का ये मतलब क्या? गाड़ी हाँ, ये ये whose, गाड़ी हाँ ये, किसकी है? जी हाँ, who's whose car is this? इज कहाँ लगाएंगे? यहाँ मिडल में, लिमन इज हाजिही सैयारती, यहाँ पे इज लगाएंगे। whose car is this? वलिमन, ये जी मैम, वलिमन, लेकिन यहाँ पे वलिमन तिल बोले का, बोले, और वो किसकी है? कोई सवाल है? जी यहाँ पे मुझे लीमन के बारे में पूछना था कि जो ली होता है वो इंग्लिश में हम इसको फॉर के तौर पे ट्रांसलेट करते हैं, तो ये आज अगर हम इसमें इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन करें तो ये इस तरह से बनेगा ना, फॉर हुज कार इज दिस, नहीं, फॉर होम। फॉर होम कार इज दिस। हम्म, जी ठीक है ना, ओके फॉर होम। तो बजाय वो फॉर होम करने के हम यूज कर देते हैं, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके ठीक है ना। तो उर्दू में तो एक ही मीनिंग होगा, ये गाड़ी किसकी है, किसके लिए है, या किसकी है। जैसे उर्दू में भी किसकी चेंज है? कर जी सकते हैं ना, ऐसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ओके अच्छा, इसका एक और मीनिंग भी होता है, बिलोंग्स टू। जी बिलोंग्स बिलोंग्स टू, टू, जी तो आपकी इंग्लिश में भी इजाफा हो रहा है ना। जी बिलोंग टू भी कह सकते हैं, हुज भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? फॉर आ, होम, फॉर होम। जी लेकिन फॉर होम सबसे कार्स, आसान क्या है? हुज जी कार इज दिस? ये गाड़ी किसकी है? हु तो नहीं कहेंगे ना, हुज कहेंगे। अब जी हु के बिल्कुल आगे एस नहीं लगाना, ये कहनी कि हु के आगे एस लगा दे, हुज कार इज दिस, जी। फॉर क्योंकि ये होम दिस ऑपस्ट्रॉफी कार। वाला नहीं होगा ना, जी, क्योंकि ये अगर हम एस का इजाफा करेंगे फिर तो वो ऑपस्ट्रॉफी वाला बन जाएगा ना लेकिन हम हाँ, दूसरा हुज यूज कर रहे हैं ना, वो नहीं करेंगे, एच वो ओ, ये वाला नहीं करेंगे, हुज नहीं करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। जी एच ओ एस ई वो वाला तो यूज फिर वो करेंगे। बन जाएगा ना, पोजेसिव केस बन जाएगा। जी हुज का मतलब है किसकी कार है दिस, हुज कार इज दिस। वलिमन एंड हुज दैट, एंड हुज दैट। अब इसमें भी आप देखें तो ये वो खबर है, किसकी है? इसको खबर ही बनना है इसको, और ये जी मुब्तदा बन गया। मुब्तदा हो गया। जी अब इसके आगे सैयारा तू नहीं लगाया उन्होंने। उर्दू में भी ऐसे करते हैं, ये गाड़ी किसकी है और वो किसकी है ना। वो किसकी है? जी दोबारा से गाड़ी तो नहीं लाते ना, ये गाड़ी किसकी नहीं है और वो किसकी है। दोबारा गाड़ी लाए हम? नहीं लाए ना, उर्दू नहीं में भी नहीं लाते, इंग्लिश में भी नहीं लाते। हुज कार इज दिस एंड हुज दैट, तो जगह बच गई ना हमारी। इसलिए अल्लाह जी ताला ने ये वाली लैंग्वेज चूज किया कि मीनिंग में भी फर्क नहीं पड़ता, और जगह भी थोड़ी। अभी बजाय इसके एक दफा और लिखते हम अस्यारा तू, क्या फायदा था लिखने का? कोई फायदा था? मीनिंग समझ आ रहा है? नहीं समझ आ गया। जी आगे पढ़िए, हाजी सैयारा तू। हाजिहि सय्यारतु लित्तबीबी व हम्म, तिल्का लित्ताजिरी। वतिल का ये लित्ताजिरी, तो ये, लित्ताजिरी अब इसमें मुब्तदा खबर ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट गाड़ी। अलग अलग करें। जी ये मुब्तदा है। हम्म, हाजिहि सय्यारतु मुदाफ, लित्तालिबी इस मुदाफ इलैह, और वा ये इस अतफी, वतिल का लित्ताजिरी, व इसमें ये मुब्तदा तिल्का। बन जाएगा और ये खबर जी बन और ये जाएगी। खबर बन जाएगी। जी इसको खबर ही बनाना है, जिधर भी आए इसको खबर ही जी बनाना है, मुरक्कब जारी को, जी ठीक जी है। तो जी हाजी सैयारा तू, अब इसमें हाजी ही मार्फा है ना। जी अब वो जो क्या जी कहाँ गई है वो मुब्तदा बनाने वाली मार्फा, तो हाजी ही मार्फा है कि नहीं, मुझे ये बताएं। जी ये है ना, है ना। क्योंकि जी क्योंकि इस जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो उसमें मारिफा कंसीडर होते हैं ना। उनमें कौन कौन से नाउन आते हैं? एक तो अलम आता है, अलम का मतलब है कि निशानी, झंडा, जी है ना, अलम। जी इस ये इल्म हम्म, नहीं है, अलम है, ठीक है। अलम का मतलब होता है जी निशानी, झंडा। तो हर बंदे का एक जी नाम, उसकी निशानी होता है ना। जी प्रॉपर नाउंस किस प्रॉपर तरह से नाउन जो होते हैं। उसका होता है, जैसे आपका है, मेरा है, आपके हस्बैंड का है, हम्म जो भी, तो वो आपका क्या होता है? अलम होता है, सही है। उसके जी बाद अगली चीज क्या है? ये मर्द औरत जो आ, होता है, ये इसमें जात होता है, ये प्रॉपर नाउन नहीं होता, ये कॉमन नाउन होता है। जब मर्द का कोई नाम होगा ना, उस आदमी का कोई नाम होगा ना, मोहम्मद या खालिद, तो वो आपका फिर प्रॉपर नाउन होगा। ये तो कॉमन नाउन है, मर्द, हर हर मर्द को मर्द ही कहते हैं ना, लेकिन जब जी उसका खास नाम हो जाता है तो वो फिर प्रॉपर नाउन हो। अब ये अलम क्या हो गया? ये आपका प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर इसकी नाउन हो मिसाल हामिद लिख ले, मोहम्मद लिख ले, ठीक है।
तो ये है, खालिद लिख लें। वलदुन को आप अलम नहीं कह सकते, नहीं, क्योंकि वो कोई भी लड़का हो वलदुन सकता है इज ना। वलदुन इज अ कॉमन नाउन, जी इसमें जात तो है लेकिन कॉमन नाउन है, ठीक है। जी। अच्छा, तो अलम हो गया, उसके बाद दूसरी चीज क्या है जो आपकी है? प्रोनाउंस जो हाँ, होते हैं, जमायर, दमायर। प्रोनाउन यानी जमायर, जी जमीर। फिर जी इसमें इशारा हो गया, जमीर जी भी मार्फा होती है, ठीक है, जी। प्रॉपर नाउन होती है जमीर भी, इशारा। हम्म। जी। और इसके नंबर अलावा तीनों, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सेवन तक जाना है हमने। ओके। हाजी ही नंबर 4, इसके अलावा इसम मौसूल अल्लाजी वगैरह है ना, अभी हाँ पढ़ेंगे जी, हम इंशाल्लाह। कंजक्शंस होती हैं। हाँ, और नंबर 5 और कंजक्शन होते इसके हैं, अलावा मुअर्रफ बिल लाम होता है, जिसमें हम अलिफ लाम को ऐड करके उससे मरफ बनाते हैं बिल्ला, ना, मारिफा बनाते हैं। जी बिल्लाम इसम भी तो होता है, जी। मरफ इसके बिल्लाम अलावा इसम। अच्छा, उसके बाद नंबर 6, नंबर सिक्स पे मुदाफ इलल मारिफा। वो आज मैंने बताया है ना, जी जी बिल्कुल। और मुदाफ होता है 7 होता लेकिन है। मारफा की तरफ मुदाफ, जो मुदाफ मारफा की तरफ मुजाफ होता है वो भी हम्म। क्या होता है? मारफा होता है। वो जी मुजाफ जो नकरा की तरफ मुजाफ होगा ना, वो नकरा ही रहेगा, ठीक है, लेकिन जो मारफा की तरफ मुजाफ होगा, इल्लल मारफा, वो आपका क्या होगा? वो मारफा हो जाएगा। जी। जैसे किताबुल वलदी, तो मारफा की तरफ जा रहा है, किताबु जईदिन, किताब मारफा हो हम्म। जाएगी। अच्छा, जी। तो मुजाफ इलैह नंबर 7 क्या हो जाएगा? देखे आपने हर्फ निदा। हर्फ, हर्फु निदा नहीं होता, हर्फु निदा थोड़ी मारफा होता है, उसके बाद जो सॉरी, आता है मुनादा। 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 हाँ, मैंने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया। हाँ, मुनादा होता है, हो जाता है ऐसा, मुझे पता है, मैंने भी सारे गन मारे हुए, ठीक है। तो ओके। ये मुनादा है, सही है। जी मुनादा जो होता है ना वो मारफा होता है, जैसे आप देखें तो वाला दोनों होता है ना, अब पीछे आप या लगाएं, हरफ निदा लगाएं, तो क्या हो जी। जाता है? या वाला दो हो जाता है ना, या वालद। तो ये जी मारफा हो गया, सही है। तो ये इस तरीके से मुनादा ये है, ये हरफ निदा है। आप ये बोल रही थी ना, ये तो मारफा जी नहीं है, ये तो हरफ है। जी। मार्फत नाम नकरा तो इस्म होता है, नाउन होता है, ठीक है जी। जनाब, सही है। ओके। अच्छा, अगर बाकी लोग जो है ना, जो लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, शाहिदा आपको ये सब समझ आया जो मैंने पढ़ाया है? आपदा को भी अभी आ नहीं रहा है? आया समझ। हाँ। नहीं, अब मुझे नहीं अभी आया इसका समझ। हाँ, जिनको समझ नहीं आ रहा ना, वो बेशक अपनी क्लास को सेपरेट कर लें, वो संडे और सैटरडे की क्लास 2 दिन पढ़ लें या 1 दिन पढ़ लें, और वो सिस्टर के साथ जो बिल्कुल बेसिक बेसिक पे है कि हमें ये ट्रांसलेशन करना है और ये करना है, बस रीडिंग करनी है अभी, ठीक है। तो मेरे साथ ही पढ़ते रहे, सुनते रहे, यहाँ भी आए करें, लेकिन साथ अब इनको जरूरत नहीं है, जो दूसरे लोग हैं ना जिनको ये समझ आ रहा है मेरे साथ, उनको जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा क्लास लेने की। क्या ख्याल है शायदा? आपको रात को 9 बजे फिर क्लास लेंगी? आपको मैं जरूरत है? एक बस एक, हाँ, एक मैं काफी है ले ना। रही हूँ क्लास। लेकिन कुछ सॉरी लोग ऐसे मैं होते हैं जिनको बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हैं, उनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है, वो फिर ठीक है, एकेडमी 9 बजे जाते हैं ना, क्लास। दिन को जी स्कूल करते हैं, जी। रात को शाम को एकेडमी जाते हैं। तो ये हम्म, वो वाला हाल होगा कि अभी आपने क्लास ली, शाम को एकेडमी जाएंगे, वहां पे पढ़ेंगे। जी। मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे का फर्क है ना, तो मेरा बिल्कुल मिड ऐसा नाइट ही हो है, जाएगी मुझे उसकी सबका वजह पता है, मुझे सबका पता है कौन कहाँ है और क्या किस टाइम। तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि संडे है, फिर शाम को गेस्ट होते हैं। सही है। से। अब हम तमारीन पे जी आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, ये सारी चीजें लिख लें। शाहिदा जी आप लिख लें कॉपी में, ये मार्फा की अकसाम मैंने लिखवाई है। और जी, नकरा शुक्रिया। तो एक ही होता है, नकरा एक ही होता है, मार्फा की 7 अकसाम होती हैं, अच्छा। ठीक है। जी जी टाइप्स ऑफ जी डेफिनेट नाउन या प्रॉपर टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ठीक। तो ठीक है कॉमन, इंशाल्लाह वो जी। जो आपका कॉमन नाउन होता है जिसे हम कहते हैं नकिरा, वो तो सिर्फ तनवीन जी, वाला होता है बस, वो तनवीन आ गई तो वो नकिरा हो गया, नकरा हो उसके गया ऊपर जी। अलिफ लाम डाल दें तो वो प्रॉपर नाउन जी डेफिनेट बन जाएगा, जी सही है। तो जी पढ़ने वाले बने, सब शुरू से ही जी पढ़ते हैं। मुझे वॉ का मीनिंग भी नहीं आता था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे वॉ का मीनिंग नहीं आता था। आप में से बहुत सारों को आता होगा, मुझे नहीं आता था, लेकिन मैंने पढ़ा तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह सब। वॉ के मुझे माशा 17 मीनिंग आते हैं, 5-6 मीनिंग तो मैं अभी आपको पढ़ा सकती हूँ वॉ के,
اور میں نے بہت پڑھا ہے ایڈوانس لیول تک. تو اب یہ ہے کہ اس کو لے کے قبر میں تو نہیں جانا نا. جو پڑھا ہے سیکھا ہے اس کو آگے جب مال کماتے ہیں تو مال میں سے خرچ بھی کرنا ہوتا ہے نا. جی تبھی بڑھتا ہے نا وہ آگے, ورنہ تو نہیں بڑھتا. بالکل آپ بالکل. اس جی کو رکھ دیں, جی پانی بھی اگر کھڑا ہوگا تو بو چھوڑ دے گا نا. جی کہیں پانی پونڈ میں کہیں پہ ایک جگہ پہ ہے اور وہ بہ نہیں رہا پیچھے سے. اور اب دریا میں دیکھیں کتنا مچھلیاں بھی ہوتی ہیں, سب ہوتا ہے, لوگ کچرا بھی پھینکتے ہیں, لیکن پانی صاف ہوتا ہے کہ وہ بہ رہا ہے بہ رہا ہے بہ رہا ہے. سمندر بھی ایسے ہی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا پانی کہیں کھڑا ہوگا وہاں مچھر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, وہاں بو ہو جائے گی. تو ایسی جگہ جہاں بھی دیکھیں پانی کو وہاں سے ختم کر دیں, سب سے اچھا طریقہ, کو آگے ڈینگی وینگی بھی آنے والے ہیں. اچھا جناب, تو اب تمارین کرتے ہیں. عجیب انل اسئلۃ العطیتی, کون پڑھے گا اس کو؟ عابدہ پڑھیں گی یا نئے لوگوں کو موقع دیں؟ اب ٹو یو, میں پڑھ سکتی ہوں اگر گلناز آپ آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ. بہت شکریہ بھائی. عابدہ ٹھیک ہے میم. آ جائیں. آپ بھی ایکسٹرا کلاس لیں گی نا, آپ تو بہت شوق سے پڑھتی ہیں. جی میم انشاءاللہ لوں گی میم. انشاءاللہ کوئی نہیں ہے, وہی آپ ادھر ادھر کہیں کچھ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ ادھر ادھر, وہی تھوڑا پڑھ لینا بیٹھ کے, ٹھیک ہے. جی تو اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے تو کلاس نہیں لیں گی, پھر اگر آئیں گے تو کلاس لیں گی نا. جی عجیب جی. عجیب پڑھیں. عجیب عجیب انل اسئلاتی اسئلاتل عتیتاتی یا ہے, یا ہے. تا جی تاتی نہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں. آتی تو یہ ہو گیا نا, آتی جی آتی ہو گیا نا, یہ الف ہے, یہ تا کے نیچے زیر ہے, آتی, ٹھیک ہے. اور جی آتی کے بعد یا ہے, ٹھیک ہے. جی. آتی یا تی, یہ تی تا کے نیچے زیر ہے. آتی آنسر یتی, دو. آتی جی یتی. آتی اردو میں بھی بولتے ہیں نا, آتی ایسے ہی لکھتے ہیں نا, آتی. اور جی 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 آتی یا, اور پھر آگے تا ہے, آتی یتی. اس کا جی مطلب بھی آنے والا, آنے والی, مثالیں, آنے والے کوشچن, ٹھیک ہے. جی جی جواب دیجئے آنے والے کوشچن کا, ٹھیک ہے. کا عجیب انل اسئلۃ العطیتی. جی. چلیے کچھ ایک دو کا آپ جواب دے دیں, باقی کوئی اور دے دے گا. تو بہت ہی حاضا آسان. من حاضر رجولو و من ذالکر رجولو. رجولو, رجولو. اچھا, من کون, ابھی من کا معنی یہاں پہ ہو آئے گا, اور من کیوں آ رہا ہے, ماں نہیں آ رہا ہے, یہاں ماں آ رہا ہے, یا من آ رہا ہے. تو میں نے کیا بتایا تھا, جب انسانوں کے لیے بات ہوگی تو من آئے گا, جب بے جان چیز کی بات ہوگی, نام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, تو ماں آ رہا ہے, ٹھیک اسم. ہے. تو جی جب بھی آدمیوں کے بارے میں سوال ہوگا تو اس کے لیے پھر ہوا من آئے گا. من کوشچن کے لیے آ رہا ہے, حاضر رجلو, ہو از دس مین, یہ آدمی کون ہے. و ذالکر رجولو, اور وہ اور آدمی, وہ آدمی, وہ آدمی کون ہے, ٹھیک ہے نا. جی یہ آدمی کون ہے اور وہ آدمی کون ہے. تو ہے. جی ہاں, تو اب اس کے بارے میں جواب دینا, انہوں نے بولا کہ عجیب انل اسئلۃ, آنسر دا فالوئنگ کوشچن. تو یہ آدمی کون تھا اور وہ آدمی کا کون تھا. تو ہم یہ جو کوشچن والا ورڈ ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں آنسر میں, ایسے ہی کرتے ہیں نا. تو پھر ہم جی. یہاں پہ بولیں گے حاضر رجلو تاجرن, حاضر تاجرن, و من کو نکال دیں گے, ذالکر رجلو طبیبن. جملہ پورا کرنا ہے نا. جی اگر ذالکر رجلو خالی چھوڑ دیں گے تو جملہ پورا نہیں ہوگا, اس کے آگے اس کی خبر بھی لگانی ہے. حاضر حاضر رجلو, ہاں, ذالکر رجولو طبیبن. طبیبن, یہ آدمی مرچنٹ ہے, تاجر ہے, تاجر ہی بول دیں, اور اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے, طبیب ہے. جی طبیب بھی بول سکتے ہیں, جی طبیب. ہاں. اب مسمت تاجری,
माँ, माँ का मतलब क्या होता है? व्हाट, क्या, है ना? व्हाट, जी, क्या। इसम हाँ, नाम हो गया। हाँ, इस्म ताजरी, ताजिर का नाम, ताजिर क्या का है? नाम क्या है? तो अब हम इसको तो छोड़ देंगे बीच में से। इस्म ताजरी, ताजिर का नाम क्या था? याद है किसी को? ताजिर पहला वाला था ना, उसका नाम क्या था? कोई भी बता दे, कोई भी नाम बता दे। मोहम्मद, मोहम्मद, महमूद। महमूद, वेरी गुड, माशाल्लाह, आपको याद रह गया। महमूद। कुछ लोगों को अल्लाह ताला ना एक्स्ट्रा वो देते हैं, थोड़ी एनर्जी भी देते हैं और दिमाग भी देते हैं, याददाश्त भी देते हैं। इस्मुत ताजरी महमूदुन, मस्मुत तबीबी, तबीब का नाम क्या है? तो अब जब जवाब लिखेंगे तो इस्मुत तबीबी क्या नाम था? खालिदुन, मोहम्मदुन, क्या था? सईदुन। साइदुन। साइदुन। अमूमन इसमुत तबीबों के नाम ऐसे ही होते हैं, दुन। साइदुन, दुन। अब ये दुन दुन क्यों आ रहा है? तबीबुन, ताजिरुन, क्योंकि ये खबर है। खबर क्या होती है? वो इनडेफिनेट होती है, यानी वो नकिरा होती है, कॉमन नाउन जी, होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर तनवीन आती है फिर। अच्छा, आगे आप आ जाए। अभी जो शाइस्ता, शाहिद, आयशा, नाम ही नहीं याद होता। आपका नाम आयशा तो नहीं है ना? आप नहीं, आयशा आयशा, ही है। आयशा ही है, अच्छा, सही है। जी। कुछ दिन मुझे कंफ्यूजन रहेगी शाइस्ता और आयशा में। आज शाइस्ता ओके। आई नहीं है। अच्छा, चले आ जाए, एक क्लास मिस करेंगे ना तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। मिन अइन सय्यारतु तबीबी, इसका आंसर क्वेश्चन करें पहले, मीनिंग। मिन अइना सय्यारतु तबीबी। um, who um, who अइना where दिस इज नॉट हु, सय्यारा। दिस इज नॉट हु, दिस इज min मिन। sorry from फ्रॉम from वेयर, uh वेयर from where इज, सय्यारतु car। इज फ्रॉम वेयर okay। इज uh, सय्यारतु तबीबी। doctor from where is इज अपनी तरफ से लगाएंगे ना, ये लाइन का इज होता है। फ्रॉम वेयर from इज where is the doctor's car। डॉक्टर्स केयर। अगर आप कहेंगी ना, मिन को नहीं लगाएंगी, सिर्फ आप ये लगाएंगी, तब भी क्वेश्चन तो बन जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट होगा। ऐन सैयारा, तो तबीबी का मतलब है कि तबीब की गाड़ी कहाँ है ना? जी जी। सही है ना? हम्म। वेयर इज डॉक्टर्स कार। लेकिन मिन नहीं ना कहेंगी तो फिर फ्रॉम, फ्रॉम वेयर इज, ठीक है, फ्रॉम वेयर from इज where। सैयारत तबीब। जी। ठीक है, यानी उसकी गाड़ी कहाँ से है, उसका मेक बता, उसकी पूछी जा रही है ना, कौन सी कंट्री की है वो, जापानी है, अमेरिकन है, पाकिस्तानी है, पूछी जा रही। मिन ऐना, तो मिन ऐना का डिफरेंट मतलब होता है, ऐना का मतलब डिफरेंट होता है। तो तबीब की गाड़ी कहाँ से है, उन्होंने बताया था। कहाँ पर है नहीं बताया, पूछा कहाँ से है, तो हमें मुल्क का नाम बताना पड़ेगा ना। आ, अब ये यहाँ वाला पर तो, तो ये वाला तो क्वेश्चन में नहीं लाएंगे ना, ये तो क्वेश्चन का है ना, ये तो आंसर में नहीं लाएंगे ना। तो जी तो कोई ये भी वाला, नाम बोल सकते हैं अगर आपको याद ना हो पिछले हाँ, वाला तो। याद ना हो तो कोई भी बोल दे। सैयारा तो तबीबी आ, यबानी या यबानुन, कुछ इस तरह से। मिनल याबानी, ओके। जापान से है। देखिए ना, ऊपर जी। पढ़े ना यहाँ पे, um, मिनल याबानी। मिनल यबानी। जी। तो हमारा क्या है, ये तबीब की गाड़ी है ना, एक तबीब की है और एक जो है वो ताजर की है। ठीक है, मिनल तो यबानी। सैयारा तो तबीब मिनल याबानी, ठीक है, मिनल याबानी। अब आपने क्या करना है, याबानी, जापान में वो चे वगैरह उर्दू में, अरबी में नहीं आती ना, तो इसलिए मिनल याबानी हो जाए। हम तो जापान बोलते हैं ना, जीम। तो जी। आगे क्या है, मिन ऐन सैयारतु ताजिरी। तो इसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे क्वेश्चन वाले को। सैयारतु ताजिरी, मिन क्वेश्चन के लिए नहीं है, ठीक है ना, मिन को इधर लाना है। हम्म। सैयारतु ताजिरी मिन अमरीका। मिनल अमेरिका। अब देखिए, मिनल अमरीका नहीं होगा, यहाँ पे भी आपको और एक मिन चीज सिखा, अमेरिका। मिन अमरीका।
जी, क्योंकि शम्सी और कमरी लेटर्स की वजह से। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इधर बताती हूँ ना। ये देखें, यहाँ पे जेर आई है क्योंकि अलिफ लाम हाँ आया है, अलिफ लाम आया है इसलिए जेर आई है, ठीक है। जी। यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आया इसलिए जेर नहीं आई। या जी यूं और समझ इसके लें ऊपर कि जिस जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आ जाएगा वहां पे जेर नहीं लगा सकते, ठीक है। आ, ठीक है। जैसे आप कनाडा कर लेना, अब कनाडा में क्या है, अना मिन कनाडा होगा या मिन की वजह से मैं जेर लगाऊंगी? आम, किसकी वजह से, मिन की वजह से नहीं, ये सिर्फ कनाडा ही होगा ना जैसे आपने क्योंकि आखिर बताया। में अलिफ, तो जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आ जाता है वहां पे जेर नहीं आ सकती। जी और अमेरिका इन में पे भी नहीं तनवीन भी आता। नहीं आएगी। नहीं, कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ अलिफ है ना। अलिफ के पीछे जबर ही आती है, अलिफ के पीछे कोई और हरकत आती ही नहीं है। तो वो तो अलिफ की वजह से जबर आ ही रही है। कनाडा में भी दाल पे जबर ही है। अना मिन ठीक है तो अमरीका। हाँ, अना मिन कनाडा, ठीक है ना। और ठीक भी है। कंट्रीज हैं जो अलिफ पे खत्म होते हैं। तो जब जी भी और अलिफ इसमें पे, जो भी लफ्ज अलिफ पे खत्म होगा उसके नीचे जेर नहीं आएगी। मसलन मूसा, मूसा के आखिर आ, में अलिफ आ रही है ना, साउंड आ रही है ना, मूसा, जी। है ना, आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म, अब इसके जी आ नीचे रही ली है। ली लगाएंगे, मिन लगाएंगे तो जेर नहीं आएगी। मगर तो इसकी हालत तो मजरूर होगी नहीं, राइट? हाँ, हालत तो मजरूर हो जाएगी। नहीं। कनाडा भी मजरूर हो गया, अमेरिका भी मजरूर हो गया, ये भी मजरूर हो गया, लेकिन लगा नहीं सकते क्योंकि आखिर में जी अलिफ आ गया, है ना। ठीक है। जी और अलिफ लाम इस पे इसलिए ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी मारिफा है, तो इसलिए अलिफ लाम इस पे ऐड नहीं हो मार्फा तो सकता। ये भी था ना, मार्फा तो ये भी था ना, जी लेकिन इस पे तो ऐड किया है। इस पे तो जी ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये ठीक है। ऐड कौन करता है? ये अरबी जबान वाले खुद करते हैं। मक्का पे वो ऐड नहीं करते, मदीना पे ऐड करते हैं, अल मदीना कहते हैं। ताइफ पे करते हैं, रियाज पे करते हैं, अलिफ लाम ऐड करते हैं, जद्दा पे नहीं करते। तो ठीक ये है लेकिन ये है दोनों है। जिनकी जुबान है ना उनको ही फॉलो करना है, ठीक है। वो किस पे ठीक है करते लेकिन हैं? वो पाकिस्तान पे नहीं करते, हिंद पे हम्म, कर देते हैं, अल हिंद, है ना। मिनल हिंदी जी आपने पढ़ा होगा ना। जी हिंद पे आ, अलिफ लाम ऐड कर देते हैं और पाकिस्तान पे नहीं करते। हम्म, लेकिन तो ये अभी भी दोनों मारिफा ही है। अल अल बिल्कुल यबानी और बिल्कुल अमेरिका। बिल्कुल, ये भी डेफिनेट अलम है, ये भी अलम है, ये भी अलम, कंट्री का नाम है ना। अलम में सिर्फ जी इंसानों के नाम नहीं होते हैं, जी शहरों, ठीक है, जगहों के नाम भी होते हैं, सही है। तो वो भी इसमें आ जाते हैं। अलम जो भी किसी का प्रॉपर नाउन होगा ना, जैसे कराची है या दिल्ली है, दिल्ली कहते हैं, तो वो क्या है, वो अलम ही है ना, उनकी निशानी है शहरों की, सिर्फ इंसानों के नाम तो नहीं होते, जी लेकिन ठीक है फिर भी ना। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे बात समझ नहीं आई क्योंकि मिनल यबानी के नीचे हमने कसरा लगाया है लेकिन मिन लगाया क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका। अलिफ लाम लगा हुआ है। ओके तो ये मतलब प्रॉपर अगर रूल देखें, है अपने हिसाब पाकिस्तान से नहीं कर। पाकिस्तान अलिफ लाम नहीं लगाते ना अरब लोग, है ना। हम्म, अब उसके जी नीचे पीछे आप मिन लगाएंगे, बिल्कुल मिलता जुलता है, कंट्री नेम है, सब कुछ है, अलिफ नून पे खत्म हो रहा है। इसके नीचे जब मिन मिन लगाएंगे तो मिन पाकिस्तान ना होगा, जेर नहीं होगी, जेर नहीं लगा ओके। सकेंगे, हालांकि ये मजरूर हो रहा है लेकिन मिन की वजह से। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, अलिफ लाम की वजह से जेर आ रहा है। और ये अलिफ लाम हम अपने पाकिस्तान पे अलिफ लाम खुद नहीं लगा सकते, ऐसे तो ईरान वाले भी लगा लें और अफगानिस्तान वाले भी लगा लें, है ना। तो हम जी खुद नहीं लगा सकते, उनको भी मिन ईराना ही करना पड़ेगा, जेर नहीं लगा सकते। ठीक है तो ये एक्सेप्शंस में आता है जिसमें हमें याद करना पड़ेगा ये कि हाँ, किस में हम लगा सकते हैं और किस में नहीं। हाँ, वो आपको आगे जाके बताएंगे। इतने इस चीज पे इतनी चीजें इकट्ठी मैं बताऊंगी ना, फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, फिर आपने ओके वॉमिट कर देनी है। ऑलराइट। वॉमिट कर, ओके इधर ही कर देनी है आपने, आपने कहना हम कल आएंगे ही नहीं। आपने, ऑलराइट। ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी ना। अभी आप सिर्फ ये याद रखें क्योंकि मैंने आपको मुजाफिल अल मारफा का भी बताया, ठीक है, और फिर यहाँ पर जी भी तो सबको एक जैसा नहीं समझ में आ रहा होता ना। तो आप ये जी याद रखें कि जिस लफ्ज के आखिर में अलिफ आ जाएगी वहां पे आप जेर नहीं लगा सकते। हाँ जी वो तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं लगा सकते। जी जितने भी अलिफ अलिफ वाले नाम देखें जो अरबी में अलिफ आते हैं एंड पे खत्म होते हैं, वहां पे आपका जेर नहीं आएगा, भले उसके पीछे हरफ जार आ जाए,
जी ठीक है बिल्कुल ना, ऐसे ही ये है। आपने पॉइंट याद रखना है। जी, सही ठीक है। है। और इनके हम्म, ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आता, इनके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं आता, और इनके ऊपर जेर भी नहीं आती। तो जहाँ पे अलिफ लाम आ जाएगा वहां जेर आ जाएगी। मक्का पे ओके। अलिफ लाम नहीं आता ना, तो इसलिए हम्म, मिम मक्का ता होता है, मिम मक्का ता होता है। ठीक है। मदीना पे आता है तो फिर मदीना ती हो जाता है, मिनल मदीना ती हो जाता है। ये अभी आप एक जी साथ में आपके दिमाग में डालोगे ना तो आपको भी फिर मुश्किल होगी। सही है। ओके। तो अब आपने जी इतना याद रखना है कि आखिर में अलिफ लाम की वजह से यहाँ पे से, तो अभी ये जो हम सवालों के जवाब दे रहे थे ना, उसमें भी हमने यही करना है ना। जहाँ पे मिनल याबानी थी वहां पे हमने जेर लगा दिया, अलिफ लाम आ रहा था जेर लगा दी। जहाँ पे अमेरिका आया, सयारा तो ताजिरी मिन अमेरिका, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अमेरिका के नीचे जेर नहीं लगाएंगे, मिन अमेरिका करके छोड़ जी देंगे, मिन कनाडा। पता लगाएंगे ना इसके ऊपर। हाँ, बस कुछ भी नहीं लगाना, कनाडा कनाडा ही रहेगा, मूसा मूसा ही रहेगा। ठीक है। ओके अब ये ओके। नहीं कि वो मजरूर नहीं होगा, और फिर जार की वजह से मजरूर हो रहा है, लेकिन हम लगा नहीं सकते। पाकिस्तान के ऊपर हम मजरूर हो रहा है पाकिस्तान, लेकिन हम लगा नहीं सकते। ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें ये आगे जाके आपकी सब क्लियर हो जाएंगी, जैसे जैसे एग्जाम्पल्स आएंगी ना। अभी आपको कितना मुश्किल हो रहा था कि ये आपका डिफाइन करना कि ये जुमला बन रहा है या फ्रेज बन रहा है। मुश्किल था ना, कभी आप इसको जुमला कह रहे हैं, जी कभी आप बिल्कुल इसको नहीं। फ्रेज। अब क्लियर हो जी गया ना एग्जैक्टली। कि अलिफ लाम जी आएगा तो फ्रेज होगा, जी और अगर अलिफ लाम नहीं आएगा तो फिर तनवीन आएगी ना, हाजा रजुलन आएगा ना, तो वो जी जुमला होगा। तो जी बाकी चीजें भी इसी तरह हो जाती। इसको एज अ होल आपने लेके कुछ भी बनाना है, और ये खबर नहीं बन सकता। ये याद रखें कि ये चूंकि इसमें नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला, ये जो कि इसमें इशारा है, ये मार्फा की अकसाम में से इसमें इशारा है यहाँ पे, ये वाला। तो ये आपका कभी खबर नहीं बनेगा, क्योंकि खबर जो होती है वो नकरा होती है। तो इसको आपने हमेशा मुब्तदा ही बनाना है, इसको खबर कभी नहीं बनाना। और वो जो जार मजरूर होते हैं उनको हमेशा खबर बनाना, उनको मुब्तदा नहीं बनाना। ये जी। जिधर भी और मैम जो जो ये क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, आ, इसमें इस्तेफाम हम्म, इंटरोगेटिव, इनको हम डेफिनेट कंसीडर करेंगे या फिर इनडेफिनेट? इनको देखें, इनका ये होते तो ये इनडेफिनेट है, इसको ओके दिमाग में बिठा लेंगे, इनडेफिनेट होते हैं। अब यहाँ पे ये सारे इनडेफिनेट ही आ रहे हैं। ठीक है। ओके। इनडेफिनेट है जी तभी इनको खबर बना रहे हैं ना, और इसको मुब्तदा जी बना रहे हैं। ये खबर मुकद्दम बन रहे हैं। खबर क्या होती है, नकरा होती है ना, इनडेफिनेट जी होती है ना, बिल्कुल। तो ये इनडेफिनेट बन गए ना। और हम्म। ये जो है ये मुब्तदा बन रहा है। ठीक जी है। तो अभी आप इस चीज को जहन में बिठा लें कि ये नकरा के हुक्म में होते हैं, नकरा ही होते हैं ये। ठीक है। ओके अब एक्सेप्शन आएगा तो मैं बता दूंगी आपको, ओके। एक्सेप्शन आएगा तो मैं आपको वहां पे समझा दूंगी। तो अभी आपने ये याद रखना है कि हमेशा खबर बनते हैं। यहाँ पे भी आपका क्या है, ये मिन, ये तो मिन है ना, ये ऐना जो है ना, जी ये खबर बन रही है, और ये मुब्तदा जी बन रहा है, और इस तरह ये जुमला बन रहा है। तो ऐना के अगर सिर्फ ऐना होता तो फिर अभी देखें यहाँ पे सिर्फ ऐना आ रहा है, तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा ना। यहाँ मिन ऐना आ रहा था, यहाँ पे सिर्फ ऐना आ रहा है। अब इसका ट्रांसलेशन करें क्या है, ऐना बैतु ताजर, अयना बैत ताजिरी, where is the merchant's house? मर्चेंट। Where is अब merchant's ऐना क्या है, house? खबर है। ठीक है, ये हमेशा खबर बनते हैं क्योंकि नकरा होते हैं, और ये आपका जी मुब्तदा बन गया। तो मुब्तदा बाद में आए तो उसको मुब्तदा मुअख्खर कहते हैं, लेट होता है वो, और खबर जो होती है वो पहले आ जाती है तो उसको मुकद्दम कह देते हैं। और वो क्यों ला जी रहे हैं आपको पता है ना, कि अगर हम इसको अपनी जगह पे लाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जी हमेशा क्वेश्चन वाला बिल्कुल। वर्ड वेयर विच शुरू में लाते हैं ना, जी हर जुबान में, सिवाय उर्दू के, उर्दू में तो आखिर में आता है। जी मैम मेरा एक और क्वेश्चन भी था कि जो से इंटरोगेटिव नाउन्स होते हैं वो तो मबनी होते हैं ना, उनका तो एराब जो होता है वो फिक्स होता है। तो जिस तरह से हमने पढ़ा कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होती हैं, तो हम्म। जो आईना है और बैतु ताजिरी है, तो हम्म। इसमें हम किस तरह से लाइक बैतु और आईना का एराब कंपेयर करेंगे या फिर ताजिरू मबनी को जो होते हैं पूरा ना, जो है वो आईना के मबनी, साथ? मबनी जो होते हैं ना, मबनी आप कह रही है ना, मबनी हम्म, है, ये मबनी का कोई एराब नहीं होता। ठीक है। जी मबनी जिस जगह पे आएगा उसका वही एराब होगा। अब ये खबर की जगह पे आ रहा है तो उसका मरफू एराब होगा। ठीक है। उसका कोई जी एराब, अपना एराब तो है नहीं ना।
ऐना का, वो ओके। है नकिरा, लेकिन उसका हम्म। कोई एराब नहीं है। जैसे रफा नस्ब जार होता है, उसका कोई एराब नहीं है, वो मबनी है। जैसे हाजा होता है, ठीक है। अब इसका कोई अपना एराब नहीं है, तो अब इस जिस जगह पे आएगा वैसे ही बनाएंगे, सही जी है। तो इसी तरह ये जी। मबनी है, इसी तरह जमायर मबनी होते हैं। जो जो चीजें मबनी होती हैं उनका कोई एराब नहीं होता, वो जिस जगह पे आते हैं वो उसी का एराब ले लेते हैं। वही रहते अब हैं ये ना। खबर है तो हाँ ये मरफू हो जाएगा और नकरा हो जाएगा। नकरा तो मैंने पहले ही बताया कि ये नकरा के हुक्म में है ना। जी तो जी ये अब मरफू भी हो गया क्योंकि खबर है, और ये मुब्तदा है, और ये मारफा है क्योंकि इसका ये भी मारफा है, तो ये मारफा हो गया। जी। तो तो ये एराब ताजिरीन का भी कंसीडर करेंगे एज कम्पेयर टू हाँ, दोनों को मिला के ही बनाए, दोनों को ही मिला के बनाते हैं, लेकिन एराब ये वाला कंसिडर होता है। बैतू का। ओके। हाँ, बेइतु का। और मारफा होना भी इसी का, नकरा होना भी इसी का कंसिडर होगा, क्योंकि ओके। मुब्तदा असल में इसी ने बनना है। ये तो मुजाफ इलैह है ना, जी मुजाफ ही सब कुछ बनता है, ये तो साथ में बना के। दोनों दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको मुब्तदा बना लें, इसको मुजाफ इलैह बना लें, ठीक है, या फिर जी दोनों को होल जो है ये आप मुब्तदा बना लें। तो बेटर तरीका यही जी। होता है कि दोनों को होल ही बना लें, सही है। ओके ओके। एक होती है या क्लासिक ग्रामर, मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ। क्लासिक में ये जी होता है कि बैतू को आप मुब्तदा बोले, इसको मुजाफ इलैह बोले, ठीक है। जी। कहीं पे अगर आपने इस तरह पढ़ा होगा ना, तो आपको लाजम उन्होंने बताया होगा ये मुब्तदा है और ये मुजाफ इलैह है। और अगर आपने आ पेंडुओं से पढ़ा हुआ, किसी पेंडु बंदे से पढ़ा हुआ है, तो पेंडु तरीके में फिर आपको बैत ताजरी पूरा ही बता देते हैं कि ये आपका क्या बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है या खबर बन रहा है, जो भी बन रहा है, सही है। जी जी। तो एक क्लासिक है। ये जो बुक्स है ना, ये क्लासिक क्लासिक ग्रामर पे बेस करती हैं, क्लासिक कुरानिक हम्म ग्रामर। तो मैं हम्म। इसको दोनों तरीके से पढ़ा देती हूँ, दोनों तरीके से पढ़ा देती हूँ ताकि समझ में आए। जी यहाँ पर आपकी खबर मुकद्दम बन जाएगी, या आपका मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा, और ये मुज़ाफ इलैह बन जाएगा। हर चीज को उसका अपना अपना हक दे देना है, जो जो उसका हक है, मुदाफ इलैह को मुदाफ इलैह। लेकिन जो दूसरा तरीका है, जिसमें देसी तरीका जिसे कहते हैं, वो हम इसको खबर मुकद्दम कर देते हैं और इस पूरे को मुब्तदा मुअख्खर कर देते हैं, पूरे कोई सब्जेक्ट बना वो होल लेते ओके हैं। ओके। दोनों तरीके अच्छे हैं, हर एक अपने पास, हर एक का जो भी बात करता है उसके अपने वो होते हैं ना, दलाइल होते हैं। जी। दलाइल को क्या कहते हैं इंग्लिश? दलाइल्स को प्रूफ्स कहते हैं मेरे ना, प्रूफ। माइंड में नहीं आ अभी भी मुझे रहा। सही वर्ड नहीं याद आ रहा। बहरहाल, अच्छा ऐना बई, तो अच्छा बताइए इसका जवाब क्या होगा। ऐना को काट देंगे, ताजिर आ, का घर कहाँ है ना। आ, ठीक है, तो हम ताजिर इसको की इस तरह से गाड़ी कह सकते कहाँ हैं। से है, कहाँ से है। अब ताजिर का घर कहाँ है, तो अब क्या होगा, ताजिर का घर मस्जिद के आ, सामने है। जी, अमामुल मस्जिदी। मस्जिदी, अमामुल मस्जिदी। नहीं, अमाम, अमाम मल मल मस्जिदी, आपने पहले सही मस्जिद। जी बोला था। जी। क्योंकि ये जो अमामुल एडवर्ब मस्जिद। होते हैं इनके ऊपर हमेशा जबर आती है, ये ओके। आखिरी लेटर पे हमेशा जबर आती है। खल्फा, बादा, है ना, हम्म। कबला, जी। सबके ये ऐस सब एडवर्ब जो होते हैं इनके आखिर में जबर आती है। तो ओके, क्योंकि अमामल, अमूमन अमामल मस्जिदी, ऐन बैतु तबीबी, इसका कहाँ है। खल्फल। पूरा आ, जवाब दे ना, पूरा जवाब दे। ओके, मुब्तदा भी बैतुत चाहिए और तबीबी। खबर भी चाहिए, तो बैतु तबीबी मुब्तदा बन जाएगा, और आगे जो उसके बारे में बताएंगी वो खबर बन जाएगी। इसमें भी ऐसे ही था, बैतु तबीबी खलफल। आ, इसका मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर था। कौन बताएगा, खलफल मदरसती, मदरसती। मदरसती या मदरसा, मदरसा क्या होता है, स्कूल। स्कूल जी। स्कूल होता है। और एक मुदर्रिस भी होता है, और उसकी जो मुदरिस तो फीमेल आई थिंक टीचर टीचर होता है के ना। लिए यूज करते हैं। जी। हाँ, और एक एक मुदरिस होता है और एक मुदरिसा होता है। मुदरिसा पेश के साथ, ये मदरसा है जबर के साथ। मुदरिसा क्या होता है, वो फीमेल टीचर के लिए यूज होगा ना, और फीमेल, मुदर्रिस जो फीमेल है टीचर। वो मेल टीचर के लिए। हाँ, मुदर्रिस और मुदर्रिसा, और मेल से फीमेल बनाना भी आना चाहिए, है ना। जी तो जी। वो गोल ता लगाने से बन जाता है। अच्छा, इकरा वक्त कौन पढ़ेगा थोड़ा सा आके।
तरन्नुम आप पढ़ेंगी आके? मैं कर, आप लोग लाजिम जो बेसिक पे हैं वो लाजिम वो सिस्टर की मैं क्लास पढ़ूँ ज्वाइन करें, ठीक है? जी, मैं पढ़ूँ। हम्म, ठीक है, दुआ भी है नजर आ रही है मुझे। आप आए, आप पढ़िए। जी, मैं शाहिदा नहीं पढ़ूँ पढ़, जिनने इंशाल्लाह। पढ़ा है थोड़ा बहुत जी, दूसरों को मौका दें प्लीज। ओके, ठीक है। सही है, तो तरन्नुम आ जाए, फिर मैं दूसरों को बुलाती हूँ। आवाज नहीं आ रही तरन्नुम, अनम्यूट करें। बाजी हमारे यहाँ गाने बज रहे हैं इसलिए नहीं पढ़ रहे, वो डेक बंद नहीं कर रहे वो लोग। आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, सही है, चले मैं ये कौन है, दुआ को बुला लेती हूँ। दुआ आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थोड़ा सा टाइम है, पढ़ ले बेटा। जी मैम। हम्म, जी। हाजल वलदु खालिदुन। हम्म, मैम इसका यूं होगा ना, दिस बॉय इज खालिद, दिस ये बॉय, लड़का खालिद। तो लाइन कहाँ लगाएंगे इसके लिए? लाइन कहाँ लगाएंगे? दिस बॉय इज खालिद, मैम हाँ वलदु खालिद यहाँ के पे दरमियान लगाएंगे। में। इस लाइन से पहले पहले जो होगा वो आपका मुब्तदा होगा, जो बाद वाला होगा वो खबर होगा। ठीक है, लड़के के बारे में, इस लड़के के बारे में खबर दी जा रही है कि वो खालिद है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वज़ालिकल वलदू मुहम्मदुन। मुहम्मदुन, एंड दैट बॉय और इज ये लड़का मोहम्मद है। एंड मोहम्मद। मोहम्मद प्रेडिकेट हो गया, खबर हो गई, और ये वाला मुब्तदा मोहम्मद। हो गया। इसको जुदा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते जाले का मुब्तदा है और वलदू खबर है। खबर नकीरा जी होती मैम। है और ये मारफा है। अगर जाली का वलदुन हो तो वो खबर बन जी सकता मैम। है। वलदुन, आप इन दोनों को आप मिला के तो नहीं पढ़ रहे ना, तो ये आपकी खबर हो गई। तो ये मतलब इसको अच्छी तरह समझ लें, इसमें बहुत गलतियां करते हैं स्टूडेंट। हाजर मैम ये दोबारा रजुलु, से, जी बोले। जी ये मैम। एक दफा दोबारा से बताइएगा। ये वाला, वज़ालिकल वलदु, या अगर अलिफ लाम आ रहा है ना तो फिर आप इनको तोड़ नहीं सकते, दोनों को मिला के ही मुब्तदा बनाएंगे। और अगर ठीक है बीच तो में अलिफ लाम नहीं है तो फिर इसको अलग कर दें, इसके बीच में लाइन डाल दें, इसको ओके। मुब्तदा बना दें इसको। मैम जैसे हाजा हम करीब के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर वजालिक है तो वह हाजल वलद नहीं कर सकते, मतलब दोनों को। हाँ, तो ये दूर का लड़का है ना, हाजल वलदू, ये लड़का खालिद है, और वो लड़का पॉइंट किया जा रहा है ना, कर सकते हैं जाली जी मैम। हाजी हिल वलदू कर सकते, हाजल वलदू कर सकते हैं, ये लड़का खालिद है और ये लड़का मोहम्मद है। लेकिन एक लड़का अगर दूर खड़ा हुआ तो फिर जाली का ही करना पड़ेगा ना। आपका जी मतलब है मैम। ये है कि हम इसको जाली का वलदुन मोहम्मदुन कर दें ऐसे? मैं हम इस, मतलब मैम कहती हूँ कि अगर हम उन वर्ड्स को अल्टर कर दें, जैसे हाजा है यहाँ पर जालिक कर दें, मतलब दूर को हम हाँ तो कर कर रहे हैं, दें, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर सकते हैं ना हम बीच, थोड़ा सा हाँ चेंज। कर सकते हैं, लेकिन अगर एक लड़का दूर खड़ा है तो फिर आपने दूर का इशारा लगाना है, और बिल्कुल। करीब खड़ा है तो करीब का ही लगाना है। सही है, ऐसे नहीं कर सकते कि दोनों को ये, अगर दोनों करीब खड़े हैं या दोनों ही दूर खड़े हैं तो फिर दोनों के लिए इशारा उसी तरह आएगा ना। अच्छा, बस जी। आप ये जो है ना इसको नहीं तोड़ सकते, जी मैम। ये काम नहीं कर सकते आप इसको जी मुब्तदा बना दें, इसको खबर बना दें। खबर जो होती है ना वो तनवीन वाली नकरा होती है, और यहाँ पे अब ये तनवीन लगाने से क्या नकरा हो गया? नहीं। हाँ नकरा नहीं हो, ये मार्फा ही है। अब क्या करें, जी इसकी मार्फ। तनवीन हटा दें इसको बताने के लिए कि इसका नाम मोहम्मद है? मैम तनवीन तो नहीं हटा सकते ना, फिर हम्म, अलिफ लाम लगा देंगे। नहीं अलिफ लाम भी नहीं लगा सकते, वो पहले से मार्फा है ना, तो तो मार्फा जो अब पहले से मार्फा होता है उस पर अलिफ लाम थोड़ी लगता है। जी मैम फिर तनवीन लगी रहेगी ना, इन तनवीन केस अगर लगी हम। रहेगी, ये हमारी मजबूरी है, जी। क्योंकि हम तनवीन गिरा नहीं सकते। तनवीन हम तभी गिराएंगे जब पीछे या लगाएंगे, या मोहम्मद हो जाएगा, उसी वक्त इसको हम करेंगे। या ठीक है, खालिदू अभी भी सही। ये मार्फा है, जी। तब भी ये मार्फा ही रहेगा, अभी भी ये मार्फा ही है, डेफिनेट नाउन है, और यहाँ भी डेफिनेट। सही है। जी।
जी अभी मैम। आज का लेक्चर आपने दोबारा सुनना है, आप लेट आई हैं, मुझे लगता है हमने बहुत कुछ पढ़ा है आज। मार्पा की मैम पूरी अकसाम जी पढ़ जी ली, जी। ठीक है ना? तो आप रिकॉर्डिंग जरूर सुनिए। उसके बाद हाजल वलदु खालिदुन, ये लड़का खालिद है और वो लड़का जो है मोहम्मद है। आगे क्या है? मैम हाज़ा रजुलु मुदर्रिस, हम्म मतलब जो ये यहाँ पर रजुल है, मेन का यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बॉय। तो हाज़ा रजुलु मुदर, ये आदमी टीचर है, इस हाँ, तो तरह। टीचर, लड़का तो टीचर नहीं हो सकता ना, जी आदमी टीचर होगा। हाजर रजुल मुदरिस मैम, वज़ालिकर रजुल ये मुहद्दिस। नहीं लगेगा है। समझ आया? वज़ालिका रजुल मुहंदिस, और जो ये आदमी है वो इंजीनियर है, वो आदमी, वो आदमी। और वो आदमी क्या है? इसका तर्जुमा वो आदमी करेंगे, दैट मैन। जी, ठीक है। मुहंदिसन मतलब इंजीनियर है। हाजल किताबु जदीदुन। ये किताब नई है, न्यू है। वज़ालिकल किताब कदीमुन, और वो किताब पुरानी है। जाली हाजल किताबु, यहाँ पे लाइन लगाएंगे, इसको मुब्तदा बनाएंगे, इसको खबर बनाएंगे। बना देंगे। आप मुझे ये बताएं कि हाजा बाबुन क्या है? ये दरवाजा है। ये दरवाजा है। इसमें इसको जरा सा करें, एनालिसिस करें, कैसे करेंगे? हाजा को क्या मैम बनाएंगे? हाज मुब्तदा बनाएंगे, और जो बाबुन है खबर बनाएंगे, और जो हाँ, है इन दोनों के दरमियान में ही हमने फिक्स करना है। इज या हाजा है बाबुन। अपनी तरफ से लगा देंगे। अभी इसको आप ये नहीं कह सकती दिस डोर, इसको नहीं। कहेंगी दिस इज आ डोर, है ना? जी दिस डोर क्यों नहीं कह सकते इसको? मैम, क्योंकि ये मतलब इटसेल्फ एक पूरी बात बन रही है ना, हाजा बाबुन। हाँ, तो क्योंकि हम इसमें उसको। अलिफ लाम नहीं आ रहा ना। जी अगर अल बाबू हो ना, तो फिर हाजल बाबू जो होता है वो आपका क्या हो जाता है? दिस डोर हो जाता है। जी अगर मैम, अलिफ फिर लाम आ जाए बीच में तो फिर दिस डोर हो जाता है ना, दिस डोर। जी, फिर उसकी खबर लगाएंगे, दिस डोर इज न्यू जदीदुन क्योंकि आगे हाजल। ही चाहिए होगी एक्सटेंशन, हाँ मतलब ठीक है, जो आपको समझ आ गई, मैंने कहा लेट आई है शायद, भूल गई हूँ। चले आगे, क्या है? हाजी सयारा तू। लियोलियन, ये जो कार है अली के लिए है, क्योंकि लाम आ रहा है तो इस तरह से sentence बनेगा। लियोलियन, ली अली जिन क्या बन रहा है मुझे बताएं। ली खालिदुन। हाँ, ली खालिदिन क्या बन रहा है? मैम हाजी ही, लाम का तो जितना मुझे कुरान पाक के पॉइंट ऑफ व्यू से पता है, तो वो इस ऐसे होगा ना, जैसे मतलब हाजी सही होगी इसमें। हाँ, लिए, ली का मतलब लिए, जी, लिए। तो वो खालिद के लिए है, खालिद के वतिल का, लिए। और जो वो है, क्योंकि ये दूर के लिए हम पॉइंट आउट करें तो ये वो खालिद के लिए है। हाँ, तो लाम का थोड़ा सा ये है। लाम जो है ना, ये जेर देता है ना अगले इसम को, है ना? जी लाम हरफे जर है ना, जी प्रपोजिशन है ना। बीता कालीफी, बीता कालीफी, मिन इलाला, ठीक है ना? तो ये हरफे जर होते हैं, और इनके बाद जो इसम आता है, हमेशा इसम ही आता है बाद में, और मजरूर होता है। फेल जी नहीं आ मैम। सकता इसके बाद, इसम ही आएगा। जी मैम, ये जैसे अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, तो उसमें हाँ, स्टार्ट में बस लाम वही आ है, मतलब। उसको, ये दो वर्ड है, बाद लोग इसको एक ही वर्ड कह देते हैं कि दो वर्ड है, एक ली है और एक अल्लाह है, जी ठीक है? अब ये जो होता है, अलिफ इसका गिर जाता है, इसमें लाम जी इधर मिल जाता है, लिल्ला बन जाता है। ये वसली है ना, तो ये गिर जाता है, तो लिल्ला बन जाता है। तो ये इस तरह से, इसमें दो वर्ड है, मुरक्कब जारी है, ये भी मुरक्कब जारी है। जब एक हरफ जर होता है, उसके बाद एक नाउन आता है जो जेर लेता है, तो वो मुरक्कब जारी होता है। जब एक इशारा आता है और उसके बाद एक अलिफ लाम वाला इसम होता है, तो वो मुरक्कब इशारी होता है, ठीक है? जी
میم کچھ جگہوں پر کنفیوژن تھی، وہ لاسٹ ٹائم بھی ہینڈ ریز کیا تھا، تو وہ اینڈ میں پوچھوں یا ابھی پوچھ ابھی لوں؟ پوچھ لیں ابھی ٹائم تھوڑا سا ہے میرے پاس، یہ بتائیں. ہم نے ملٹیپل ٹائمس پڑھا ہے نا کہ تلک ہم دور کے لیے یوز کرتے ہیں، اور تلک جو ہے وہ مؤنث کے لیے یوز کرتے ہیں. تو ہوں، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ ایک آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم، تو یہاں پر ہم رسول کو تو مذکر میں کنسیڈر کریں گے، پھر یہاں پر تلک کیوں یوز ہوا ہے؟ ہوں. کیا آنا چاہیے اس کے ساتھ کا برابر کا اشارہ آنا چاہیے نا. تلکا کب آتا میم ہے؟ جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے. یہاں تو عاقل کی جمع آ رہی ہے نا، جی ہے نا. تو عاقل کی جمع ہو تو ساتھ سیم اشارہ لگاتے ہیں نا، ہؤلاء الرسل، ہے نا. یہ آنا چاہیے نا. جی تو تلکا کب لگاتے ہیں؟ جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے، جیسے اقلام ہوتا ہے، الاقلام، تلک الاقلام. تو یہاں پر عاقل کے ساتھ تلکا کیوں آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے. تو ابھی ہم لوگ فیل پڑھ رہے ہیں، فیل سٹارٹ کیا ہوا ہم نے، تو اس میں اگر آپ پڑھیں گی نا تو آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ جب کوئی لفظ جماعت پہ بولا جاتا ہے، جماعت پہ، پوری جماعت پہ بولا جاتا ہے. جماعت جی کیا میم. ہوتی ہے؟ ہول تھنگ ہوتی ہے نا. جیسے فوج ہے، تو فوج جی میم. دیکھنے میں تو واحد کا لفظ ہے، افواج اس کی جمع ہوتی ہے، لیکن وہ پوری ایک جماعت پہ بولا جاتا ہے. رسول بھی پورے رسول کا لفظ یہاں جماعت کے لیے بولا جا رہا ہے، رسولوں کی جماعت پہ آ رہا ہے یہ لفظ. یہ ایز جی اے میم. پلورل نہیں آ رہا، یہ رسولوں کی جماعت پہ آ رہا ہے. تو جب کوئی لفظ جماعت پہ بولا جاتا ہے تو وہاں پر مؤنث کا اشارہ مطلب میم آخر. ریشنل پلورل فارم میں ہوں گے تو وہ ہمیں مؤنث ہی کنسیڈر کرنے ہیں. ہوں، مؤنث نہیں، صحیح. ہمیشہ نہیں ہوتا، جماعت ہو نا تب. اگر مطلب آپ کے، جب آپ کے عاقل ہوتے ہیں، عاقل جو ہیں، عاقل کیا ہیں؟ ریشنل ہے نا، جو بھی ہیں. تو وہ آپ کے ابھی ان کے ساتھ جو ہے سیم اشارہ آتا ہے، لیکن یہاں پر واحد کا آ رہا ہے، تل کا آ رہا ہے، مونس، واحد مونس کا آ رہا ہے نا. تو کیوں آ رہا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ بہت سے لوگوں کا سوال آتا ہے. میں اس کا جواب دے 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 کے تھکیں، تھکنا تو خیر کیا ہے، لیکن ہر بندے کو یہ سوال آ رہا ہے. اب یہاں پہ الرسل لکھا ہوا ہے، اور یہ عاقل ہیں، رسول جو ہیں وہ عاقل ہیں. تو اس کے ساتھ تو ہا اولائے رسول آنا چاہیے، یا دور کا اشارہ لگائیں تو اولائے کا رسول آنا چاہیے. تو تل کا کیوں آ رہا ہے؟ واحد مونس کیوں آ رہا ہے؟ جبکہ واحد مونس تو غیر عاقل کے لیے آتا ہے. یہ سوال جی ہے نا. تو اب اس کو چونکہ اس کو ایز اے جماعت لے رہے ہیں، تو اس لیے اس کے ساتھ اشارہ واحد کا لا رہے ہیں. اور مونس کا کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ جماعت جو ہوتی ہے وہ مونس ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جماعت جو جی ہوتی ہے وہ مؤنث ہی ہوتی ہے، جماعت کا لفظ بھی مؤنث ہے. تو اس کا جو جواب دیتے ہیں نا، اس کا میں ابھی مجھے پتہ نہیں کون سے لیکچر میں، لیکن میں آپ کو لیکچر بتا دیتی ہوں، اس میں انہوں نے جواب دیا ہے، اور سیم یہی دیا ہے، سیم یہی دیا میم ہے. بس کیا ہے وہ سمجھ آ گیا آپ الحمد نے للہ. سن لیا ہوگا یہ لیکچر، شاید سنا ہو، لیکن آپ کے نہیں پلے نہیں پڑ رہا ہوگا نا، اس لیے آپ نے سوال کیا. کافی لیکچرز لیتے ہیں نا، تو اس وجہ سے میں ہاں، بھی وہ اب آپ کچھ. دیکھیں یہ پوری جماعت پہ بولا جا رہا ہے. تو جب آپ وہ میرے ساتھ وہ پڑھیں گی نا فیل، ہم لوگوں نے فیل سٹارٹ کیا ہوا. ایک تو آپ لوگ کلاس وقت پہ نہیں آتے. تو ہماری کل جو تھی لسان القرآن تھی، نہیں آج کیا ہے؟ سنڈے ہے نا. ٹیوزڈے کو ہمارا، سیٹرڈے کو ہماری لسان القرآن ہوتی ہے. کل ہم فرائیڈے. نے پڑھا تھا نا، ورک پڑھا تھا نا. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سیٹرڈے کو لسان میں القرآن ہی پھر پڑھا. پڑھا تھا. پھر لسان القرآن ہی پڑھی تھی کل ہم نے. تو سیٹرڈے کو لسان القرآن کی کلاس ہوتی ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. ہم نے ورک شروع کیا ہوا ہے، فیل شروع کیا ہوا ہے، فیل کا. تو اگر آپ جی چاہتی ہیں ٹیسٹ دینا چاہتی ہیں تو میں آپ کو ٹیسٹ کے گروپ میں بھی ڈال سکتی ہوں. آپ کو ٹیسٹ کرنے سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئی. انشاءاللہ. تو فیل کے بارے میں کتنا جانتی ہیں مجھے بتائیں. فیل میم ماضی کے، مجھے ماضی کی گردان گرامر. آتی ہے؟ ماضی کی گردان آتی ہے آپ کو؟ میم گرامر کا ایز سچ مجھے نہیں پتا، لیکن جو مصحف ہے وہ میں نے لفظی با محاورہ والا نا کورس کیا تھا. تو قرآن پاک کی جو اوور آل عربک ہے وہ 80 to 90% آتی ہے. اور مطلب ماضی مضارع کا کچھ پتا ہے، اور جو ضمائر ہوتے ہیں، ضمائر کا بھی اتنا نہیں، نہیں، کسی بھی مطلب وہ چیز کو پاس. نا ایک سائڈ سے لے کے پڑھنا ہوتا ہے، پھر آپ یہیں رہے. ٹھیک ہے،
آپ یہیں जी رہیں, یہیں پہ آپ کو دیکھیں ابھی سب چیزیں. ابھی ہم اسم کے بارے میں زیادہ پڑھ رہے ہیں, فعل کے بارے میں ابھی یہاں پہ نہیں پڑھ رہے ہیں, بک 1 میں. فعل کے بارے जी میں ہم بک 2 سے سٹارٹ کریں گے. 1 میں بھی تھوڑا تھوڑا ذہبہ جلسہ آ جاتا ہے, خرجہ, لیکن آگے جا کے پھر وہ زیادہ ڈیٹیل میں. تو آپ سیٹرڈے کی کلاس لے لیں, اس میں آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی, کیونکہ ہم نے ابھی ورب شروع کیا ہے ماضی. تو ماضی کی گردان آپ کو فعل, فعلا, فعلو یہ آتی ہے. لسان القرآن جو آپ کا الگ سے کورس ہے شاید. ہاں وہ ہے. نہیں, دونوں سیم ہی ہے تقریباً, لیکن اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور اس میں لسان القرآن پڑھائی میم جاتی اس کی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں چینل پہ, اگر یہ سرچ کریں گی وہاں پہ ڈیلی اپلوڈ کرتی ہیں آپ, ہے. ہاں ساری ریکارڈنگز ہیں. ہاں, ریکارڈنگ تو ساری ہے. آپ لیٹسٹ والی چیک کریں, اس میں میم روز آنا ڈالتی ہیں. تو میں آپ کو دے دوں میم گی, کل والی میں آپ کو دے دوں گی, آپ دیکھنا آپ کو کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نیکسٹ جی کلاس میم جوائن کر لینا سیٹرڈے کی. یہ جو ٹینسز ہوتے ہیں جس میں جیسے املت املتو ہو گیا, املت ہو گیا, اس طرح جو میں زیر زبر سے سینٹینسز کا اور جو چینج ہوتا ہے وہ سارا کچھ کرنا بھی آتا ہے. ماضی مضارع کا تھوڑا سا پڑا ہوا ہے, لیکن مجھے بیسکلی وہ سارا مصحف پوائنٹ آف ویو سے جو سارا کچھ آتا ہے نا اتنا آتا ہے, آگے کا تو نہیں. ہماری مطلب مصحف والی جو کلاس ہوتی ہے وہ جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس جی میں جو گرامر میں بتاتی ہوں نا وہ ہماری جمعے کو ہوتی ہے. میم اب پھر میں انرول ہو جاؤں تاکہ مجھے آسانی ہاں, ہو, ڈبل مارکس نہیں ہونا نا اس میں بھی سارے ہم کا. ابھی تک سورۃ البقرہ کر رہے ہیں, اس میں ہم نے تقریباً 51 52 آیت کی, اس کا لیکچر بھی پڑا ہوا ہے لاسٹ والا, جو ابھی میں نے جمعے کو کروایا نا وہ بھی وہاں یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, وہ بھی آپ سن سکتی ہیں. میم ایک آخری سوال تھا, ہوں. لیکن ابھی ٹائم میں بھی وہ شارٹ ہے, تو آپ نے بتایا نا کہ واو کے آپ نے 17 ٹائپس پڑھے ہیں, تو ہوں. اگر قرآن پاک کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے جتنا یاد آ رہا ہے تو واو کو تو 17 بی کے میننگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوں واو کے جو ہوتے ہیں وہ 6 سے زیادہ نہیں ہوتے. واو کے 6 ہوتے ہیں. واو کا میننگ قسم کا بھی ہوتا ہے, اینڈ کا بھی ہوتا ہے. واو جو حالیہ بھی ہوتی ہے نا. اسی طرح اس کے 3 واو عاطفہ بھی ہوتی ہے, واو استنافیہ, اس کے 6 ہی میننگ ہوتے ہیں واو کے. بی جی کے میم 17 میننگ ہوتے ہیں, لیکن وہ بھی پورے قرآن میں تو 17 کے 17 تو نہیں آتے, 5 6 ہی آتے ہیں بی کے میننگ بھی. وہاں کے ملٹیپل میننگ سے. ہاں, با کے ملٹیپل ہیں, لیکن وہ سارے تو قرآن میں نہیں آتے نا, سم آف دیم لا آتے اور ہیں. لا. جی میم ہاں, تو یہ چیزیں تو پھر علم کا تو سمندر ہے نا. ماں کی بھی بہت اقسام, ماں ماں کی کی بھی. بھی ماں کی 12 13 اقسام ہے. تو میں ساری جی تو نہیں میم پڑھا سکتی ابھی. تو ماں میں نے بتایا ہے کہ ماں جو ہوتا ہے اس کا میننگ واٹ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے. اب بک 1 میں تو ہم نے جی یہی پڑھا ہے ابھی. من کا میننگ بتایا, من عاقل کے لیے اور ماں غیر عاقل کے لیے, ریشنل اور انریشنل کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد پھر ماں کے اور بھی میننگ ہے. ماں نفی کے لیے بھی آتا ہے, ماں جو کے معنی میں بھی آتا ہے, اللہ زی کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اگر آپ جائیں تو ماں شرطیہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ماں حجازیہ بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ آگے جائیں گے تو آپ کو تو بہت سارے میننگ ملیں گے. صحیح. جی میم 12 13 میننگ تو ماں کے میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں. جی میم انشاء اللہ. تو یہ چیزیں تو آہستہ آہستہ ہوتی ہیں نا. پھر ابھی ہماری یہ سنڈے والی کلاس بالکل بیسک ہے. اتنے آپ کے سوالوں کو میں نے یاد جواب دے دیے. میم میرا ایک جی میم کوشچن تھا. ہوں. آج ہمارے پاس جس طرح سے کہ 4 فریزز ہوتی ہیں اسی طریقے سے 4 کیسز ہوتے ہیں نا. تو ہوں. اس میں جتنے بھی کیسز ہیں جینڈر, نمبر, اسٹیٹس اینڈ کیپیسٹی, وہ وہ کیسے سارا. وہ کیسز جو ہے نا وہی آپ کے وہی ہیں, فریزز ہیں. جی, ان تو کو وہ آپ سارا کیسز. مطلب میچ کرنا چاہیے فریزز کے اندر, جتنی بھی یہ 4 فریزز ہوتی ہیں ہاں ہاں, تو اس کے وہ اندر یہاں پہ میچ. آ رہے ہیں نا, یہاں پر آ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے نا, جی آ رہے ہیں سارے. آج آپ نے ڈیمونسٹریٹو فریز پڑھا ہے نا, اس کی شکل یہ ہوتی ہے, بیچ میں الف لام آتا ہے. اگر اس کو گرا جی دیں اور اس کو تنوین دے دیں تو حاضی ساتم جملہ بن جائے گا. ہاں, پھر سینٹینس یہ ہوگا نا. گھڑی ہے. جی. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھا ہے. پھر یہ آپ نے یہ بھی پڑھا ہے, یہ مرکب جاری ہے. پھر آپ نے مرکب اضافی بھی پڑھا ہے نا. جی. پھر آج آپ نے ایڈورب کے بارے میں بھی پڑھا ہے, خلفہ بادہ ہے نا, وہ سارے منصوب ہوتے ہیں. امام مل خلفہ ہوتا ہے, امام مل نہیں ہوتا. تو ظرف جتنے, ان کو جی. ظرف کہتے ہیں ایڈورب کو. اب آپ کو جی. ظرف کا نہیں پتا ہوگا, لیکن ایڈورب کو ظرف بھی کہتے ہیں. اور یہ بھی نون ہی ہوتے ہیں. مضاف ہمیشہ نون ہوتا ہے, یاد رکھیں. جی. اوکے, اور ان کا بھی اعراب مطلب
फिक्स ही होता है? फिक्स होता है, क्योंकि इनका अमूमन फिक्स तो होता ऐसा होता है ना, मतलब कि जो मुदाफ होता है हम उस पे दम्मा है। हाँ, कंसिडर करते हैं ना। बिल्कुल, दमा बट दमा हमें पता जेर जबर सब आ सकता है, अगर पीछे से कोई आएगा चेंज करने वाला तो चेंज हो जाएगा, है ना। जी। मुजाफ के ऊपर आप दम्मा ही लगा देते हैं, लेकिन जब जुमले में यूज होता है मुजाफ, तो फिर उसका हम्म। एराब चेंज भी हो सकता है, जबर जेर भी हो सकता है जब जुमले में यूज करेंगे। अकेले आएगा जी। रसूलुल्लाह किताबुल्लाह यदुल्लाह, है ना, पेशी आएगा। हम्म। लेकिन जब उसको ओके। जुमले में यूज करेंगे तो फिर उसका एराब बदल सकता है। खबर के तौर पे भी वो पेशी रहेगा, क्योंकि खबर जो होती है वो मरफू होती है, लेकिन अगर आप उसको जुमले में जोड़ते हो, तो वो फिर आपका चेंज होगा। सही है, तो ये आपको जैसे जैसे मिसालें आएंगी तो चीजें समझ में आएंगी। सही है। लिमन भी मुरक्कबे जारी ही है, और फिर जर के जी। बाद जो भी आए वो मुरक्कबे जारी बन जाता है, आते ही इस समय, और जी। वो मजरूर भी होता है। अब मन देखे, मन के नीचे जेर नहीं आ रही, क्योंकि जी, मन क्योंकि क्या है। उसका भी एराब मतलब सेम ही हाँ, रहता है, चेंज नहीं वो होता ना। मबनी, मबनी के नीचे जेर नहीं आ सकती। जी। मूसा 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 एक ही शक्ल में, हाजा हाजा हाजा, लुबना 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 एक ही शक्ल में रहेंगे तो जेर नहीं आएगी, दमा भी नहीं आएगा इवन। मबनी के ऊपर ना दमा आता है, ना फता आता है, ना कसरा आता है। सही है, कुछ भी नहीं ओके। आता। मबनी तो जो ओके। होता है उसकी जो जगह होती है वैसे उसको बना लेते हैं। उसकी अपनी एक शक्ल होती है, हाजा की अपनी एक शक्ल है, हाजे ही की अपनी एक शक्ल है। ठीक है जी। ना। ये, इसको आप तोड़ नहीं सकते इस शक्ल को। ठीक है। ये क्योंकि जी। मबनी है, मन मबनी है, माँ मबनी है, आईना मबनी है, उसकी शक्ल को आप नहीं तोड़ सकते, उसके ऊपर पेश दें या जेर दें, वो मबनी है। हाँ, उसका इराब जरूर चेंज होता रहता है। मिन आईना तो आईना मजरूर हो गया ना, जी। है ना। तो मिन जी। आईना, तो मिन के बाद जो भी आएगा वो इसम होगा और मजरूर होगा, तो आईना इसमो इस्तफाम है, तो वो जी। मजरूर भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही फायदा है कि आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी वो जी। दूर दूर कर सकते हैं। ठीक है, अभी दो हम, जी। हमारा कहाँ पे हमने छोड़ा है। लिमन हाजी आ, हिस्सातु, कहाँ पे थे हम। आ, मेरे ख्याल से ये जो अली वाला किया था सेकंड ना, सेकंड अली वाला वाला आपने किया था। किया था। हाजल बाबू मफ्तूहुन, दिस डोर, दिस डोर, ये मुब्तदा बनेगा, मफ्तूहुन खबर बनेगी। मैम आई थिंक हमने 3 और 4 भी नहीं किया। मैं हाजल किताबु जदीदुन। 3rd एंड ठीक है, 4th। और ये मुब्तदा बनेगा, ये दो जुमले हैं, वो आ जाए तो एक जुमला इधर होता है एक इधर होता है, जालिकल किताबु कदीमुन, दो जुमले हो गए ये जो है किताब नई है और वो जो है पुरानी है। हाजी सैयारतु ली अलीजिन व तिलका ली खालिदिन। अब यहाँ पे मुरक्कबे जारी बन के खबर बन रही है, यहाँ पे मुफरत खबर बन रही है, वन वर्ड। यहाँ पे फ्रेज बन के खबर बन रही है, और आपका मुब्तदा भी फ्रेज ही आ रहा है। यहाँ पे आपका जी। मुब्तदा वन वर्ड आ रहा है, मुफरत आ रहा है, और खबर जो है फ्रेज में आ रही है। फ्रेज को जुदा नहीं कर सकते, ये आपका मुब्तदा, ये खबर है, इनको जोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये लाम है, ये अलिफ लाम नहीं है। अलिफ लाम होगा तो फिर जोड़ेंगे, हम्म। लाम होगा तो ली खालिदिन अलग है। इसी तरह लिमन हाजी सातु हिया ली अब्बासन, तो ये घड़ी किसकी है, हिया। अब हिया क्यों आया है, घड़ी है पीछे। ठीक है, जी। बिल्कुल ये अब्बास के लिए है, तो हाँ, ये क्योंकि मुफ्त। अब्बास तो मैस्कुलिन है ना, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए फेमिनिन पीछे हिया को चूज किया तो ये घड़ी की वजह से हमने चूज किया, अब्बास की वजह से नहीं, राइट। ये मुब्तदा है, मुब्तदा और खबर जो है ना, ये मुब्तदा है, ये खबर है। खबर जो है वो आपकी मुरक्कबे जारी बन रही है, और मुब्तदा जमीर बन रही है। ये जो हमने मार्फा की 7 अक़साम पढ़ी है ना, ये सारी की सारी मुब्तदा बन जाती है। हाजा भी बन जाता है, जमायर भी बन जाते हैं, अल्लाह जीना भी अल्लाह जी भी बन जाता है, और बाकी जी। मुरफ़ बिल्लाम इस्म भी बन जाता है, अल किताबु मुफीद। तो ये सारे जितने भी हमने पढ़े, मोहम्मद उन भी मुब्तदा बन सकता है। सही है, तो वो सारे जी। हमारे मुब्तदा बन सकते हैं, जितने भी हैं। मुजाफिल अल मार्फा भी बन सकता है ना। जी। बनाया था यहाँ ना। पे जी, यहाँ पे बस मुझे एक चीज समझ नहीं आई, क्योंकि आपने बताया ना हिया ली हम्म अब्बासिन। हम्म सो ली अब्बासिन आपने बताया कि ये खबर है, और हिया जो है ये मुब्तदा है। हम्म तो क्योंकि अब्बास तो मैस्कुलिन है और
लिया जो है वो फेमिनिन है, लेकिन मीन्स कि दोनों का जेंडर ऑपोजिट हो गया ना। तो क्योंकि आई थिंक मुब्तदा और खबर में जेंडर भी सेम होना चाहिए ना। आ, वो तब ये वो इशारा तब साथ की तरफ जा रहा है। ये जो है ना, इसको अगर आप हुआ कर देंगी ना, हुआ ली अब्बासिल, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो ओके मुब्तदा है, ठीक, ये जो जमीर है, ये पीछे जाती है और ये साथ की तरफ जा रही है। सात जी। सातु उसके ठीक लिए है, देखें, इसी इशारा तरह भी मुझे। मोनस का आया हुआ है, हाजा नहीं आया, जी उसके लिए हाजी ही आया। जी तो उसकी तरफ ठीक जो है। जमीर लौटेगी ना, वो भी मोनस ही लौटेगी, उसका इशारा भी मोनस ही होगा। ठीक है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने घड़ी के बारे में पूछा था ना, तो फिर घड़ी हमने की बात आंसर है ना। भी उसी तरीके से दिया ना। हाँ, लिए इससे जी कोई, क्योंकि ये वो नहीं है ना, देखें जब आप वो कह रही है ना कि हाजा किताबुन, तो आप कह रही है ना कि ये आपके इक्वल होने चाहिए, तो वो उस वक्त होता है जब ये मुफरद हो और ये भी मुफरद हो। ठीक है। जी ठीक है, अब ये मुब्तदा बन रही है, खबर बन रहा है, तो अब ये तीन चीजों में तो इक्वल होगा। यानी आपका ये जी भी मार्फा है, ये मार्फा और ये नकरा है, एक चीज में ही आपका ऑपोजिट होगा, वसत में, कैपेसिटी में। जी बाकी में तो ये जी इक्वल है। ये भी मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। और ये जो जी है क्या कहते हैं उसको, वाहिद है, ये भी वाहिद है। और जी तीन चार चीजें होती है ना, आ, जेंडर होती है, अदद होता है, और जी एराब होता है, तो ये जेंडर भी तो एराब एराब होता है। एराब में जी भी ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये भी मरफू है, ये भी मरफू है। हाजा भी जी मरफू है ना, तभी तो मुब्तदा बना जी है। बिल्कुल ये भी मरफू है, तो बिल्कुल। तीन चीजों में इक्वल हो गया। और वसत में जी जाके वो अपोजिट हो गए। ऑपोजिट हो गया। जी तो ये उस वक्त होता है जब दोनों मुफरद हो। ये तो आपका जमीर मुब्तदा बन रही है, और ये आपका फ्रेज जो है ये खबर बन रही है ना। तो इसमें फिर आप ये वाली चीज नहीं देखेंगे। बस ये है कि ये मार्फा ओके है, ये मरफू है, इसके अपना जो मार्फा और मरफू होना जरूरी है, वो है वो। और ये जो है खबर, तो आपकी वन वर्ड होगी तो नकरा होगी ना। अभी यहाँ पर भी ये खबर है ना, तो ये मरफू है। ठीक है, ये इसको मरफू ही जी कहेंगे, खबर हमेशा मरफू होती है, और नकरा होती है तो इसको आप नकरा मरफू ही कहेंगे। ठीक है, ये ओके फ्रेज की शक्ल में भी आ रही है, लेकिन ये असल में तो नकरा, और इसकी जो असल, इसके जो खासियत है, ये जो है वो तो यही है, ये मरफू होती है और नकरा होती है। जी तो इसको आप महलन मरफू कहेंगे इन प्लेस ऑफ रफा, और इसको आप नकरा भी कहेंगे। ठीक है। तो ओके ये तो इसी तरह खबर जुमला बन के भी आ सकती है, फिर उसको भी आप मबनी कहेंगे, और मबनी जो भी है वो बन सकता है, फिर मरफू भी हो सकता है और नकरा भी हो सकता है। चलिए यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह संडे को पढ़ेंगे। तो बाकी लोग जिनको प्रैक्टिस करनी है पढ़ने की, प्लीज वो सैटरडे और संडे की क्लास ज्वाइन करें। मैं जब भी ये क्लास शुरू करती हूँ, इसमें एडवांस लोग आ जाते हैं, एडवांस वाले। अब एडवांस वाले ये सारे नए हैं, कोई मैंने इनको नहीं लाया, अपनी दूसरी क्लासेस में से उठा के नहीं लाया, ये सारे खुद ही आए हैं, जैसे आप लोग आए हैं वैसे ही वो भी आए हैं, लेकिन वो जानते हैं पहले से कुछ, तो फिर उनके लेवल पे भी थोड़ा बहुत बताना पड़ता है। तो जो बेसिक लोग हैं, जिनको सिर्फ पढ़ना है और तर्जुमा करना है, वो कर लें। ठीक है। और आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लिया करें। सैटरडे, आज संडे, 9, आज रात 9 बजे क्लास है। बाकी लोग भी जा सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप में से कौन कौन जा सकता है, कौन कौन नहीं। मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जाना चाहे रात को 9 बजे पाकिस्तानी, 8:30 पाकिस्तानी, और 9 बजे इंडिया का टाइम होगा। तो आप ज्वाइन मैं करके, सिस्टर यहाँ पे शादाब है, शादाब को मैंने दी है ड्यूटी। ठीक है, क्योंकि मुझे ये थोड़ी अपनी तरह ही पागल पागल लगती है, ये टाइम निकाल लेती है। टाइम को निकालना पड़ता है, टाइम होता नहीं है। दूसरी चीजों को कम करना पड़ता है थोड़ा, फोन पे कम लगाएं टाइम, ड्रामों टीवियों पे कम लगाएं, तो खुद ब खुद टाइम बनता है। सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन 24 घंटे में कोई लोग उस 48 घंटे का काम कर लेते हैं। ठीक है। कोई 24 घंटे में से 12 घंटे सोते रहते हैं, और 12 जो है वो उसमें से कुछ खाने पीने में और इधर घूमने फिरने में गुजार देते हैं। तो मैम ये क्लास इसी लिंक पे करनी है कि ग्रुप कॉल कर लूं? ग्रुप कॉल कर सकती हैं, नहीं आप ग्रुप कॉल भी कर सकती हैं, बल्कि आप मेरे रूम में आ जाए, मेरा लिंक वही ज्वाइन मैं कह कर। रही हूँ कि हाँ ये लिंक तो मतलब फ्री होगा ना हाँ उस हाँ, टाइम? 9 बजे फ्री होगा। तो सैटरडे, ये आसान रहेगा, सब सैटरडे को। आसानी से इधर आ जाएंगे। अच्छा, 9 बजे जब आपके बजेंगे, तो आज मेरी शाम को एक क्लास है, वो मेरी
यहाँ के बाद 2 बजे है मेरे पास. चलिए मैं आपको चेक करके बताती हूँ, ठीक है? नहीं तो फिर ठीक आप है, ग्रुप नहीं तो कॉल मैं फिर कर ग्रुप लेना. कॉल ही कर लूंगी, फिर वहीं सैटरडे पे को ग्रुप मेरी नहीं कॉल होती, ही। लेकिन संडे को मेरी होती है. ठीक है। वो भी एक ही क्लास से, और वो कैलिफोर्निया से पढ़ते हैं 3-4 लोग. तो वो मेरी हफ्ते में एक दिन ही होती है, मुझे करनी होती है, ठीक है? तो ठीक है सर। इंशाल्लाह, ठीक है जी. जज़ाकुमुल्लाह खैर कसीरा, सुब्हानकल्लाह व अल्लाह बिहम्दिक. खैर कसीरा। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? अशहदु अल्ला और इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम या वरहमतुल्लाहि मानी. वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.